السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں محبت سے عشق کا سفر ناول کا پارٹ 6۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو بغیر دیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، یہ آپ فائل چیک کر لیں۔ لائبہ اذان کے آفس میں داخل ہوتی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ایک شارٹ سی بلو کلر کے ٹاپ کے ساتھ وائٹ کلر کی ٹائٹ پینٹ ڈالی ہوئی تھی جو اس کے جسم کے ساتھ چپکی اسی کا حصہ لگ رہی تھی۔ لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت فل تیار ہوئی اذان کو اپنی جانب متوجہ کروانے کی کوشش میں تھی، تو اذان جو سوچوں میں گم تھا لائبہ کی پکار پر اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے ہاتھ بڑھاتے اس سے فائل لی۔ اذان نے اپنی دوسری نگاہ بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں سمجھا تھا اور یہی بات لائبہ کو آگ لگا گئی تھی۔ اس نے نظریں گھمائی تو میز پر پڑا پین نظر آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے اسے نیچے فرش پر گرایا۔ سوری سر۔ لائبہ جلدی سے اس کے قریب جاتی نیچے جھکتی وہ پین اٹھانے لگی۔ جب آفس کا دروازہ کھولتے نور اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے نظر آتے منظر کو دیکھتے اس کا وجود شل ہوا تھا۔ چہرہ سرخ سے سفید پڑتے وہ اپنی جگہ منجمد ہوئی تھی۔ سامنے سے نظر آتے منظر کو دیکھتے دماغ نے کام کرنا چھوڑا تھا۔ سامنے ہی وہ اذان کے انتہائی قریب کھڑی سے پین پکڑا رہی تھی۔ نور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی غلط ہی سمجھتا۔ یہاں تو پھر نور تھی جو کل سے اس کے ساتھ ناراض تھی۔ اذان اسے یہاں دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر بھی بے اعتباری کی رمق دیکھتے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوا تھا، جبکہ لائبہ جس نے نور کو یہاں پر ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، اس کی آنکھوں میں اذان کے لیے بے یقینی دیکھتے وہ بھی دل میں مسکرائی تھی اور اذان سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نور تم یہاں؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر اذان کو خود اپنے سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نور اس کی بات سنتے ایک جھٹکے سے وہاں سے پلٹی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اذان کے آفس سے نکلتی چلی گئی۔ نور میری بات سنو یار، پلیز اسٹاپ اٹ۔ وہ اپنا فون اور کی اٹھاتا جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ لائبہ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ عجیب 2 روپے کی لڑکی۔ نور جو یہاں زونش کے کہنے پر اذان کو بلانے آئی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر لنچ کر سکے، لیکن سامنے اذان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر نور کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تو وہ ایک ہی جھٹکے سے وہاں سے نکلتی ہوئی اذان کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو زر قطار نکلتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ وہ جلدی سے باہر آتی، ابھی وہاں سے نکلتی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنی بھیگی نیلی آنکھوں سے سامنے اپنے بازو کو پکڑے اذان کو کھڑے دیکھا تو گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے اپنی آواز نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نور شدید مزاحمت کرتی ہوئی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تو اذان اسے پکڑتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں لا کر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنی طاقت سے گاڑی کا ڈور اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی، میری بات سنو نور، جیسا میں نے کہا گاڑی ان لاک کریں، مجھے گھر جانا ہے۔ نور شدت سے روتی ہوئی اس کی بات کاٹتے زور زور سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اس وقت کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صرف گھر جا کر اپنے روم میں بند ہونا چاہتی تھی۔ نور پلیز ریلیکس رہو، پہلے میری بات سنو۔ اذان اس کے دونوں بازو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے دوسرے ہاتھ سے زبردستی اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ دل اس کی اتنی بے اعتنائی پر کرچیوں میں تقسیم ہو رہا تھا، لیکن وہ انتہائی ضبط سے کام لیتا نور کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نور فی الحال سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے وہ شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے کہا گاڑی کو ان لاک کریں۔ وہ اذان کی آنکھوں میں اپنی رونے کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں گاڑے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے بولی تو اس بار اذان کے ماتھے کی رگیں ابھر کر باہر آئی تھیں۔ وہ شدید غصے سے نور کو دیکھتا اس کے قریب ہوتا، نور کی سیٹ بیلٹ باندھے وہ اپنی گاڑی کو ریورس کرتے فل سپیڈ کے ساتھ سڑک پر دوڑا گیا تھا کہ نور نے گاڑی کی اتنی سپیڈ دیکھ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ یہیں پر گاڑی روکیں۔ نور ایک نظر گاڑی کو کسی اور راستے جاتے دیکھ اذان کو دیکھتے غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی کہ اذان کی آنکھیں مزید سرخ انگارہ ہوئی تھیں، چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ ابھی اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ اتنے غصے کے باوجود بھی وہ نور سے بہت لائٹلی بات کر رہا تھا اور نور اس کی آنکھوں میں موجود سرخی دیکھ کر ہی اپنی جگہ سٹل ہو گئی تھی۔ اب وہ چپ چاپ گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی آنسو بہانے میں مصروف ہو چکی تھی اور اذان اس کے رونے کو نظر انداز کیے اپنی گاڑی کو فارم ہاؤس کے راستے میں ڈال چکا تھا جہاں کچھ ماہ پہلے زونش اور اریان کا نکاح ہوا تھا۔ علی، آپ کا آفس کتنا اچھا ہے۔ زونش اس وقت اریان کے آفس میں موجود اس کے آفس کی ہر چیز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی تو اریان اس کی بات پر مسکرایا۔
मैं यहाँ बैठ जाऊँ अली? वो अरियान के ऑफिस की चेयर की तरफ इशारा करती इजाज़त तलब नज़रों से अरियान को देखते हुए बोली, ऑफ कोर्स ज़ू बेबी, तुम बैठ सकती हो। वो खुद इसे लिए चेयर की तरफ बढ़ता इसे वहाँ बिठा गया तो जोनिश भी बच्चों की तरह अरियान की चेयर को झूलों में तब्दील करती इसकी चेयर को गोल गोल घुमाते हुए झूले लेने लग गई थी। अरियान इसकी बच्चों वाली हरकतें देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। जब इसका मोबाइल रिंग हुआ, निकाल कर देखा तो अज़ान की कॉल थी। अरियान ने हैरान होते कॉल उठा ली। जी अज़ान भाई, नूर को मैं लेकर बाहर आया हूँ तो तुम इसका इंतज़ार ना करना और शायद हमें लेट भी हो जाए। वो कहता बिना अरियान की सुने फ़ोन काटता अपनी गाड़ी को फार्म हाउस के सामने रोक गया। चलो जी, ये अज़ान भाई नूर को लेकर बाहर निकल गए हैं, चलो जू तुम्हें भी छोड़ आता हूँ। अरियान जोनिश की तरफ देखते इसे बताते हुए बोला। 1 घंटे बाद अली, वो अपनी उंगली से इशारा करती हुई बोली तो अरियान ने भी हाँ में सर हिलाया। आप आज तैयार रहिएगा, हम आज बाहर डिनर करेंगे। वो जायशा को कॉल करते हुए बोला तो जायशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी, वो खुशी से कहती हुई कॉल काट गई तो ज़ियान अपने फ़ोन को ही देखता रह गया। ये जो आपको फ़ोन काटने की बीमारी है ना, आज अपनी खैर मनाइएगा, वो इसे वॉइस मैसेज करते हुए धमकी आमेज़ लहजे में बोला, जिसे दूसरी तरफ जायशा सुनती सुर्ख पड़ी थी। ज़ियान इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को याद करते मुस्कुराहट जब्त कर गया। अज़ान अपनी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर उतरा और नूर की तरफ बढ़ा। इसकी तरफ गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसने नूर की सीट बेल्ट खोली और इसे बाजू से पकड़ते बाहर निकाला, जिस पर नूर मज़ीद मज़ाहमत करते हुए इससे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अज़ान ने अपनी सुर्ख होती निगाहों से इसे गुस्से से देखा तो नूर के मज़ाहमत करते हाथ एक पल को रुके। छोड़े मुझे, मैंने आपके साथ नहीं जाना, आप एक नंबर के चीटर, धोखेबाज और घटिया इंसान हैं। एक लम्हे को रुकने के बाद नूर फिर से मज़ाहमत करते हुए अपना हाथ छुड़वाने लगी तो अज़ान ने मजबूती से इसकी कलाई पकड़ते इसे तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ अंदर लेकर गया था। नूर की बातों से तो एक लम्हे के लिए अज़ान को अपने दिमाग पर हथौड़े लगते महसूस हुए थे। कौन सा धोखा और कौन सी घटिया हरकत की है मैंने? अज़ान इसे लाउंज के सोफ़े पर फेंकते हुए इसके करीब झुकते अपना घुटना सोफ़े पर रखते इसके चेहरे पर दबे दबे लहजे में गुर्राते हुए बोला था कि नूर सहमते हुए वहीं सोफ़े पर पीछे को खिसकी थी। बताओ मुझे, कौन सी ऐसी घटिया हरकत की है मैंने, या कौन सा धोखा और चीट किया है मैंने तुम्हें जो तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही हो? वो इसके चेहरे को अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लेते सुर्ख अंगारा आंखें नूर के चेहरे पर गाड़ते चीखते हुए बोला था कि नूर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की थीं। अज़लान की धाड़ पर इसे अपना जिस्म कपकपाता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से आंसू निकलते हुए अज़लान के हाथ में जज्ब होने लगे थे जो वो बहादुर बनी हुई थी। अज़लान के इतने से ही गुस्से से इसके सारे अल्फाज दम तोड़ते हुए महसूस हुए थे। आपका दूसरी लड़कियों के साथ फिज़िकल रिलेशन? नूर अपनी आंखें मींच कर अभी अपनी बात पूरी करती जब अज़लान पूरी कुव्वत से धारते हुए इसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त खतरनाक हद तक मजबूत कर गया था कि नूर को लगा इसका जबड़ा अज़ान की मजबूत गिरफ्त पर टूट जाएगा। नूर, जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना घटिया समझ रही हो तुम मुझे? नूर की बात पर अज़ान का बुरी तरह से जब टूटा था। माथे की रगें ऐसी थीं जैसे अभी फट जाएंगी। चेहरा अपने किरदार पर लगे इल्ज़ाम की वजह से सुर्ख अंगारा हुआ था। अज़ान की धार पर नूर ने फट से आंखें खोलते हुए इसके खून छलकाते चेहरे की तरफ देखा था। अपने अल्फाज याद करती वो बुरी तरह से कांपती हुई इससे अपना चेहरा छुड़वाने की कोशिश करने लगी जो यकीनन अज़लान की उंगलियों के निशान बन चुके होंगे। अज़लान ने एक झटके में इसका चेहरा छोड़ते हुए वहाँ से खड़ा हुआ था। अपने बालों में हाथ फेरते वो नूर से रुख मोड़ कर खड़ा हो चुका था, जबकि नूर अपने चेहरे पर हाथ रखती बुरी तरह से रोने लगी। अज़ान अपनी गर्दन और बियर्ड को रब करते अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर के अल्फाज जिसे अपने दिमाग में गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। तुम्हें पता है अभी तुमने मेरे किरदार के बारे में क्या बात की है? वो दोबारा से इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे बाजू से अपने सामने खड़ा करते हुए बोला तो नूर का शिद्दत से रोना भी इसे इस वक्त जहर लग रहा था। इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान इसने नोट किए थे, लेकिन गुस्सा इस कदर हावी था कि इसके निशान भी अज़ान को पिघला नहीं सके थे। इस तरह अचानक से खड़े होने पर नूर बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अज़ान के इस कदर शदीद रिएक्शन पर बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए रंधी आवाज़ में बोली थी। तो क्या मतलब था तुम्हारा? समझाओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। जब से सुर्ख होती आंखों को इसने रोने के बायस सुर्ख होती आंखों में गाड़ते वो इसके दोनों बाजुओं को थामते हुए बोला तो नूर ने हिचकी भरी थी। वो आप इस लड़के के करीब थे तो मुझे लगा। नूर रोते हुए बोली थी कि अज़ान ने आंखें मीच कर खोली थी। नूर, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें एक रख कर लगाऊं और सारी अकल तुम्हें आ जाए। अज़ान का बस नहीं चल रहा था, वो सामने खड़ी लड़की का कुछ कर डाले, जबकि नूर चेहरा झुकाए अब बस रोने का शुगल फरमा रही थी।
हस्बैंड वाइफ में सबसे पहले यकीन का रिश्ता होता है और तुम्हारी बातों में मुझे कहीं भी ये रिश्ता नज़र नहीं आया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो तुम्हें एटलीस्ट मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब कम से कम इस तरह आंसू बहा कर तुम मजलूम ना बनो। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता आखिर में नूर के रोने पर भी टोंट कर गया, जबकि नूर के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सिर्फ तुम वो वाहिद लड़की हो जो अज़ान हैदर की ज़िंदगी के साथ साथ दिल पर भी कब्जा कर चुकी हो। तुम्हारे पहले भी तुम थी और तुम्हारे बाद भी तुम ही रहोगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की हो सकती है। तुम्हारे अलावा सब लड़कियां मुझ पर हराम हैं और मेरी ज़िंदगी में कम से कम हराम की कोई जगह नहीं है। इस बार वो नूर का चेहरा ऊपर करते, इसके आंसू अपने हाथों से साफ करते अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और नूर बेयकीनी से इसे देखने में मसरूफ़ थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नूरुल हया ही काफ़ी है, इसके अलावा ना मेरी ज़िंदगी में कोई आ सकता है और ना ही नूर किसी को इजाज़त दे और ना ही नूर किसी को इजाज़त दे अपने हस्बैंड की लाइफ में एंटर होने की। वो इस बार इसके माथे पर अपने लब रखता हुआ नूर का दिल अपने लिए साफ करता वहाँ मोहब्बत की जगह बना रहा था। नूर बिना पलक झपकाए इसे देखने में महव थी। इसे अज़ान के अल्फाजों से अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। और मैं चाहता हूँ नूर मेरी मोहब्बत पर ईमान लाते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। अज़ान का लम्स इसके गालों पर बिखरता हुआ नूर की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर गया था। अज़ान की बातों से इसे अपना आप नहायत कीमती लग रहा था। इसकी बातें दिल में जगह बनाते हुए इसके नाम पर धड़कने लगी थीं। इसकी बातों, इसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि नूर इसके कहने से पहले ही इसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके करेक्टर पर बात की। नूर ने शर्मिंदगी से इसकी आंखों में अपनी रोने के बायस सुर्ख सूजी आंखें डालते हुए कहा तो अज़ान ने इसके लबों पर अपने लब रखे थे तो नूर ने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद की थीं। अज़ान जो इंतहाई नरमी से इसके लबों को महसूस कर रहा था, अचानक से इसके अंदाज में शिद्दत दर आई थी कि नूर ने जल्दी से अपनी आंखें खोलते अपने हाथ इसके कंधों पर रखते इसकी शर्ट को जकड़ा था। अज़ान के अंदाज में बला की शिद्दत दर आई थी। वो अपने दोनों हाथ इसके चेहरे पर रखे हुए था तो इस बार नूर ने अपने हाथों को इसके कंधे पर मारना शुरू किया था, जिसे महसूस करते अज़ान ने नरमी से इससे दूर हटकर अपनी खुमार से सुर्ख होती आंखें इसके चेहरे पर गाड़ी थीं, जबकि नूर गहरे गहरे सांस भरती अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई थी। अज़ान के लब मुस्कुराहट में डले थे। बुरा तो तुमने किया है, अज़ान इसकी कमर सहलाते हुए बोला। आप मुझे माफ़ कर दें। वो इसकी शिद्दत के बाइस अपनी तेज़ होती सांसों के दरमियान बोलती अपना चेहरा इसके सीने से निकाल गई। माफ़ तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर कल को फिर ऐसा कुछ हो गया तो तुम फिर मुझ पर शक करोगी, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। अज़ान इसकी तरफ देखते संजीदगी से बोला, नहीं, मैं कभी शक नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। नूर इसकी तरफ देखती यकीन दिलाते हुए बोली, जिस पर अज़ान ने ना में सर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है हमारे रिश्ते को बहुत टाइम मिल चुका है, तो अब हमें अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए। वो फिर से संजीदगी से नूर की तरफ देखता बोला तो नूर की बैकबोन में सनसनाहट दौड़ी थी, पलकें बुरी तरह से लर्जी थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो अज़ान के चेहरे से नज़रें चुराते हुए बोली थी। यू नो बेटर व्हाट आई वॉन्ट टू से। वो इसके सुर्ख होते गालों को अपने हाथ से सहलाते बोला तो नूर की जान लबों पर आई थी। अज़ान, हमें लेट हो रही है, सब वेट कर रहे होंगे। नूर इसके इरादे जानती अब अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगी। इसके बहाने पर अज़ान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। कोई वेट नहीं कर रहा मेरी जान, मैंने आर्यन को बता दिया था, तुम बस मेरे हकूक़ देने की तैयारी पकड़ो। वो इसको एक झटके में अपने बाजू में उठाता रूम की तरफ बढ़ा था और नूर को अपनी जान हवा होती महसूस हो रही थी। वो इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हाइल करती इसकी गर्दन में ही चेहरा छुपा चुकी थी, जो अज़ान की बातों से सुर्ख टमाटर बन चुका था। अज़ान रूम में दाखिल होता दरवाज़ा पैर की ठोकर से बंद कर गया और नूर को हिलाते हुए इसने नूर को बेड पर लिटाया और ख़ुद अपनी शर्ट रिमूव करते वो नूर के ऊपर साया फगन हुआ था कि नूर इसे शर्टलेस अपने ऊपर झुकते देख अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर गई। मेरी बात सुने, हाँ हाँ, हमें लेट। इसकी चलती ज़ुबान को अज़ान ने अपने लबों से खामोश करवाया था। वो इसके लब शिद्दत से चूमता इसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों का लम्स बखेरने लगा कि नूर इसकी शिद्दत पर बौखला कर रह गई थी। वो अपने हाथ इसके कंधों पर रखती मजामत करने लगी तो अज़ान ने इसके मजामत करते दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेते बैकग्राउंड से लगा लिया। मेरी जान, मजामत का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए शराफत से मुझे मेरा हक लेने दो। वो नूर के मजामत करने पर इसकी गर्दन पर झुकता वहाँ अपना लम्स बखेरने लगा। इसकी बियर्ड की जुबन के साथ इसके लबों का लम्स नूर की जान फना करने के लिए काफ़ी था। पीछे हटें, आपकी बियर्ड चुभ रही है। वो रुहां से होते फिर से मदाखलत करने लगी तो अज़ान ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकालते इसे देखा था, जो बार बार मज़ाहमत करती अज़ान को मज़ीद बहका रही थी।
अच्छा, कहाँ चुभ रही है? बताओ मुझे। वो अब जानबूझकर अपनी बियर्ड इसकी गर्दन के साथ इसके सुर्ख गालों पर भी रगड़ता इन्हें और सुर्ख कर गया था कि नूर को लगा वो अब अज़लान की जसारतों पर बेहोश हो जाएगी। नहीं करें प्लीज़, वो सख्ती से अपनी आंखें मीचती हुई रुहासे लहजे में बोली थी, जिस पर अज़लान ने इसके इसके दोनों हाथ छोड़े थे। तो फिर क्या इजाज़त देती हो मुझे? वो नूर के कान के पास झुकते इसके कान की लौ पर लब रखते इजाज़त तलब कर रहा था, तो नूर को अपना दिल पस्तियाँ तोड़कर बाहर निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने दोनों हाथ इसकी गर्दन में हाइल करती इसे इजाज़त दे गई, तो अज़लान इसके दिलफरेब अंदाज में इजाज़त देने पर कमरे की लाइट ऑफ करता इसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रख गया। अभी वो दोनों बाहर से डिनर करके आ रहे थे। ज़ियान ने आज जायशा को इसकी पसंद का बाहर से डिनर करवाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी वापसी हुई थी। जायशा तो बहुत थक चुकी थी, इसलिए आते साथ ही ड्रेस चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में जा बंद हुई थी, जबकि ज़ियान अपने ऑफिस का कुछ काम करने की नीयत से लैपटॉप उठाकर सोफ़े पर बैठ गया था। थोड़ी ही देर बाद वो दुपट्टे को हिजाब की सूरत में फोल्ड किए वॉशरूम से बाहर निकली थी। चेहरे और हाथों पर वुज़ू का पानी चमक रहा था, जिन्हें वो साफ़ किए बगैर ड्रेसिंग रूम से जाए नमाज निकालती इस पर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर बाद इसने इशा की नमाज़ अदा की, जबकि ज़ियान का इरादा जायशा के बाद नमाज अदा करने का था। जायशा जाए नमाज रखती बेड की तरफ बढ़ गई, तो ज़ियान भी लैपटॉप साइड पर करता वज़ू करने की नीयत से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। खुद भी नमाज अदा करने के बाद वो बेड की तरफ बढ़ता अपनी साइड पर आकर बैठा, तो इसने देखा जायशा की अभी तक पलकें लरस रही थीं। ज़ियान के उन्नाबी लब मुस्कुराहट में ढले। हाँ, यहाँ तो कोई सो भी गया है। वो जायशा की लरसती पलकों की तरफ देखते हुए मुस्कुराहट जब्त करते बोला, तो भी जायशा टस से मस ना हुई, जबकि पलकें पहले से ज़्यादा तेज़ी से लरजीं। अब मैं प्यार कैसे करूँगा अपनी बीवी को, वो तो सो गई है। ज़ियान मासूमियत से इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए अपनी गर्म सांसें इसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला। जायशा का चेहरा सुर्ख पड़ा। अरे अरे, ये क्या, मेरी बीवी का नींद में ही चेहरा रेड हो रहा है? क्या ख्वाब में आप मुझे अपने करीब महसूस कर रही हैं? वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो इस बार जायशा का दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा। इसका दिल किया वो आंखें खोलकर ध्यान को पीछे कर दे, लेकिन फिर इसे पता चल जाता कि वो जाग रही है। बेचारी मासूम जायशा, जिस पर वो अपनी आंखें बंद किए ही ज़ियान के पीछे हटने का इंतज़ार करने लगी। चले जाने जाने ज़ियान तो सो रही हैं, मैं ऐसे ही प्यार कर लेता हूँ, इन्हें कौन सा पता लगना है। वो मुस्कुराहट जब्त करते इसके लबों पर फोकस किए बोला, तो इस बार जायशा की बस हुई थी। वो 200 की स्पीड से धड़कते दिल के साथ जल्दी से अपनी आंखें खोलती अपने ऊपर झुके ज़ियान को पाया, तो जायशा ने थूक निकला। ज़ियान इसे आंखें खोल कर अपनी तरफ तकता पाकर मुस्कुराहट जब्त करते इससे थोड़ा पीछे हटा। उठी क्यों आप? मेरा प्लान ख़राब कर दिया। वो इसे देखते मसनूई अफसोस से बोला कि जायशा का चेहरा सुर्ख पड़ा था इसका प्लान का सुनकर। कौन सा प्लान? और मुझे तो प्यास लगी थी इसलिए उठी। जायशा बेड से उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए घबराए लहजे में बोली, चलो फिर ये लो पानी पियो और सो जाओ, मुझे मेरे प्लान में कामयाब होने दो। बेड साइड टेबल से ग्लास में पानी डालकर इसे पकड़ाते हुए बोला, तो जायशा ने जल्दी से 2-4 घूंट भरते वापस से इसे पकड़ा दिया। आप भी सो जाएं। वो वापस से बेड पर लेटती हुई ज़ियान को देखते हुए बोली, तो ज़ियान इसके ऊपर साया-फगन हुआ था। जायशा ने अपनी सांसें रोकीं, लेकिन हमारा प्यार, वो खुमारी से इसकी तरफ देखते हुए बोला और झुकते हुए इसके गालों पर अपने लब रखे। मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, वो रुहासे होते हुए बोली थी, तो ज़ियान ने इसके होठों को छूते शिद्दत से इसके माथे पर लब रखे थे और जायशा से पीछे हटते इसे अपने हिसार में लिया था। ओके मेरी जान, सो जाओ। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां सहलाता इसका सर अपने सीने पर रखे हुए बोला, तो जायशा ने लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो इसे कितनी मोहब्बत करता है कि इसके ज़रा सा ही कहने पर वो इससे दूर हटता इसे सोने का कह रहा था। जायशा ने सुकून से आंखें बंद कर लीं, तो ज़ियान दोबारा से इसके माथे पर लब रखता अपनी आंखें भी मूंद गया। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल गई थी, जो खिड़की से आते हुए इनके कमरे को भी रोशन कर गई थी, जिसे महसूस करते नूर ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलीं, तो खुद को अजान के हिसार में पाया। वो अजान के शर्टलेस चौड़े सीने पर अपना सर रखे खुद का दिमाग बेदार कर रही थी, और जैसे जैसे इसे सब याद आ रहा था वैसे वैसे ही इसके चेहरे की रंगत तब्दील हो रही थी। इसने जल्दी से अपना चेहरा अजान के सीने से उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा, जो पुरसकून होकर सो रहा था। नूर के चेहरे पर कौसोकता के अनगिनत रंग बिखरे थे। वो अज़ान के सोए हुए चेहरे पर अपनी नज़रें गाढ़े टिकटिकी बांधे इसे देखने लगी कि शायद नूर की नज़रों की तपिश ही थी कि अज़ान की भी आंख खुल गई, लेकिन वो हवस आंखें बंद किए ही लेटा रहा। नूर को अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। नूर के दिल ने एतराफ़ किया था कि वो सोते हुए ज़्यादा प्यारा लगता था। बेइख्तियार ही नूर की उंगली ने आगे बढ़ते हुए अज़ान के माथे पर बिखरे हुए बालों को निहायत नरमी से माथे से समेटा था, तो नूर के साथ साथ अज़ान का दिल भी पहलू में धड़का था। नूर का अपना दिल
दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, ऊपर से इसके उठने का भी अंदेशा था और इतनी हिम्मत भी अज़ान को सोते देख कर ही आ रही थी। नूर की मखमली उंगली अब माथे से ट्रेस होती इसकी पलकों को छू रही थी। नूर का चेहरा मज़ीद टमाटर बन रहा था। वो गौर से अज़ान के चेहरे को देखती हुई अपनी उंगली अब इसकी मगरूर नाक पर ला गई थी। नूर की निगाहें अब इसकी बियर्ड और मूँछों के दरमियान मौजूद इसके उन्नावी लबों पर जा ठहरी थीं, तो नूर का दिल पस्सियाँ तोड़कर बाहर आने को हुआ, जबकि इसकी नज़रें अपने लबों पर महसूस करते अज़ान का दिल धक धक करते इसके ज़ब्त को आज़मा रहा था। नूर ने अपनी उंगली नाक से ट्रेस करते हल्के से ही अज़ान के लबों को छुआ, तो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींचा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अज़ान के लबों को छू सके, तो जल्दी से हाथ पीछे खींचते वो वहाँ से उठने लगी। जब अज़ान एक झटके में इसे बेड पर लिटाता खुद इसके ऊपर साया फगन हुआ था कि नूर का सांस सीने में ही अटक गया। इसे जागते देख नूर का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और इसने अब अपनी हालत पर गौर किया था। वो इस वक्त अज़ान की वाइट शर्ट में मौजूद थी। नूर का दिल किया वो यहीं शर्म से डूब मरे। चेहरे पर कई रंग बिखरे जिन्हें अज़लान देखते हुए सरशार हो रहा था। गुड मॉर्निंग मेरी जान, वो इसके माथे पर लब रखते इसे मॉर्निंग विश कर रहा था और नूर की हालत ऐसी हो रही थी जैसे अभी रो देगी। कुछ देर पहले की अपनी हरकतें याद करते वो अपने लबों को दांतों में लेती काटने लगी। आर यू ओके? चेहरा क्यों इतना रेड हो रहा है? अज़लान ने नरमी से अपनी उंगली इस और अंगूठे की मदद से इसके लब आज़ाद करवाते नूर के लाल टमाटर चेहरे की तरफ देखते मुस्कुराहट जब्त करते मसनूई संजीदगी से बोला, तो नूर के चेहरे पर पूरे जिस्म का खून सिमट आया था। वो रुहासी होने लगी। पीछे हटें, वो अज़ान से नज़रें चुराती लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। अज़ान का शर्टलेस वजूद इस पर तजाद खुद को अज़ान की शर्ट में अज़ान के सामने ही देखते नूर के बस आंसू निकलने रह गए थे, बाकी वो फुल रोने की तैयारी में थी। मॉर्निंग विश करते हैं डियर वाइफ, उठते साथ पीछे धकेलना ना शुरू कर दिया करो। वो रात की तरह इसके गालों पर अपनी बियर्ड रगड़ते हुए बोला, तो नूर हवास बाख्ता होती हुई थी इसे रात वाली टून में वापस आते देख कर। आप मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करते? वो रुहासे लहजे में बोली थी कि अज़ान ने झटके से सर उठाते नूर की आंखों में देखा था। क्यों, क्या कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में जो तुम्हें यह महसूस हुआ? अज़ान ने जुमाइनी अंदाज में आईब्रो उचकाते पूछा, तो नूर सटपटाई। अगर आप मोहब्बत करते तो कल रात से इस तरह तंग न करते। इस बार वो नरूठेपन से कहती हुई मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी कि इसकी बात सुनते अज़लान ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश की। ओह, लेकिन मैंने क्या किया है? वो अपने लब दांतों में दबाता इससे पूछने लगा। आपने कुछ नहीं, पीछे हटें आप। अभी वो रवानगी से इसे बताती जब इसे मुस्कुराहट जब्त करते देखा तो फ़ौरन से नाराज़गी जताते बात पलट गई। अच्छा सॉरी बाबा सॉरी, ये देखो कान भी पकड़ लिए। वो इसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए जल्दी से अपने एक कान को हाथ लगाता इससे माफ़ी मांगने लगा, तो इस बार नूर के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी जिसे इसने फ़ौरन छुपा दिया। अच्छा, तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊँ? वो इससे पूछ रहा था। नूर ने इसकी तरफ देखते जल्दी से इस बात में सर हिलाया। मुझे तुमसे शादी से पहले ही मोहब्बत हो गई थी। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए इसकी कान की लौ को भी चूम गया और नूर हैरत से इसे तकने लगी। क्या मतलब है आपका? तो जो आप मुझे पहले डांटते थे, गुस्सा करते थे, मुझे डराते थे, वो सब क्या था? नूर को सदमा ही तो लगा था इसकी बात सुनकर, इसलिए हैरत से मुंह खोले इससे पूछने लगी, ताकि तुम मुझसे सेफ रहो। हमारा निकाह हुआ था, फिर भी तुम्हें इसका नहीं पता था, तो इस वजह से तुम्हें अपने से बचाने के लिए मैं तुम पर गुस्सा कर जाता था। वो अब इसकी गर्दन पर लब रखता हुआ बोला था। नूर इसके लम्स पर कसमसाई थी। इसकी बातों से नूर का दिल फिर से धड़कने लगा था। हाँ, हमें लेट हो रही है, कल से हम आए हैं, प्लीज़ पीछे हट जाएं। इस बार नूर ने इल्तिजा की थी जिसे अज़लान महसूस करते इसके चेहरे पर जा बजा अपना लम्स छोड़ते इसके चेहरे को सुर्ख अंगारा हो करते पीछे हटा था, तो नूर जल्दी से वहाँ से भागी थी। सच में आप बहुत बड़े ड्रैगन हैं। वो वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती ऊंची आवाज़ में बोली, तो इस बार अज़लान ने हैरत से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। मेरी जान, तुमने बाहर भी निकलना है, वो इसे धमकी दे रहा था, यह बता रहा था। नूर को समझ ना आई, लेकिन इसकी बात पर डरी ज़रूर थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना बोली। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान नूर का हाथ पकड़ते डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ जहां सब इस वक्त बैठे सुबह का नाश्ता कर रहे थे। इन दोनों को एक साथ मुस्कुराते देखकर सबा बेगम और बीजान ने इन्हें दिल में ढेरों दुआएं दे डाली थीं। सब ने मुस्कुराते हुए इनके सलाम का जवाब दिया, तो अज़ान ने डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते वहाँ नूर को बैठने का इशारा किया, तो वो नज़रें झुकाती वहाँ बैठ गई। अज़ान ने इसके साथ ही मौजूद चेयर पर अपनी जगह संभाली, तो इसके साथ बैठा अरियान इसे शरारती नज़रों से देखने लगा।
अहम अहम। अज़लान भाई खैरियत थी, आपको फार्म हाउस रुकना पड़ा? अरियान ने गला खंखारते सबको एक नज़र देखते अज़लान के कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में मसरूफ़ से अंदाज में बोला। तो अज़लान ने इसकी बात सुनते गुस्से से इसकी तरफ देखा। नाश्ता करो अपना। अज़लान इसे घूरते हुए बोला तो अरियान ने मुंह में फिर से खुलबुली मची, जिस पर वो अपनी बियर्ड रगड़ते फिर से अज़लान के कान के करीब झुका। वैसे भाई अपनी बीवी को मनाने का कौन सा तरीका ढूंढा, मुझे भी बता दें, आपकी बहन बहुत नाराज़ होती है। वो फिर से बेबाक सरगोशी करते हुए मुस्कुराहट जब्त कर गया। जब अज़लान ने हाथ पीछे ले जाते इसकी कमर पर नामहसूस अंदाज में मुक्का जड़ा था कि अरियान ने लब भींचते कराह दबाई। भाई मनाने का तरीका पूछा था, ये नहीं कि बीवी से कैसे मार पड़ती है। अपनी कमर पर हाथ रखते वो अब भी बाज नहीं आ रहा था। ज़ियान जो अरियान के साथ बैठा था, इस बार इसने घूर कर अरियान को देखा। अरियान तुम्हारा नाश्ता हो गया? ज़ियान ने संजीदगी से पूछा तो अरियान एकदम गड़बड़ाया। नहीं भाई। वो इसकी तरफ देखते टोस्ट को पकड़ते बोला तो चुप करके करो, आवाज़ ना आए अब मुझे तुम्हारी। वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोला तो अरियान ने मुंह बनाया। लगता है इनकी भी आज अपनी बीवी से पिटाई हुई है। वो हल्की आवाज़ में बड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन आवाज़ इतनी कम भी ना थी कि वो दोनों सुन ना सके हों। दोनों ने इसे घूरी से नवाजा तो अरियान भी चुप करके अपना नाश्ता करने लगा। जब हुमायूं दादी से मुखातिब हुआ, दादी मैं सोच रहा था अब हमें वापस जाना चाहिए। हुमायूं एक नज़र सबको देखकर दादी से मुखातिब हुआ तो सब इसके वापस जाने का सुनकर चौंके थे। वहीं पर दादी ने भी इसे घूरा था। हमें माफ़ कर दो बच्चे, आपकी बात की लाज नहीं रख सके हम, लेकिन अब ऐसे हम तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारी और हमना बच्चे की शादी की जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। दादी हुमायूं से माफ़ी मांगते हुए आखिर में अपना फैसला भी सुना गए थे, जिस पर अरियान के अलावा सभी मुत्तफिक नज़र आ रहे थे, जबकि अरियान ने दादी की बात पर मुंह के जाविये बिगाड़े थे। नहीं दादी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमें इजाज़त दें वापस जाने की। हुमायूं आहिस्तगी से बोला था, तो इसका मतलब है आप हमें माफ़ नहीं कर रहे, तभी वापस जाने की बात कर रहे हैं? दादी ने बगौर इसका चेहरा देखते हुए कहा तो हुमायूं हड़बड़ाया। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? हुमायूं शर्मिंदा सा बोला, तो बस ठीक है, आप लोग यहीं रहेंगे, हम खुद हमना बच्चे के लिए लड़का पसंद करके इनको इस घर से रुखसत करेंगे। दादी मुस्कुराते हुए बोले तो हमना अपने भाई के पीछे नामहसूस अंदाज में छुपी थी, जबकि हुमायूं दादी के सामने कुछ बोल ना सका। ठीक है दादी, जैसा आपको बेहतर लगे। हुमायूं गहरी सांस भरते हुए बोला तो अरियान के अलावा सब मुस्कुराए। हुमायूं तुम भी हमारे साथ ऑफिस आया करो, बल्कि आज से ही हमारे साथ चलना। ज़ियान ने आखिर में बात करते इसे एक और हुक्म सुनाया था कि हुमायूं महज हाँ में सर हिला कर रह गया। अली अली बात सुने पहले मेरी। अली अभी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठता जब जोनिश भागते हुए पोर्च में दाखिल हुई। आराम से, क्या हो गया है, और दुपट्टा सर पर लो। अरियान पहले इसे भागते देख फिक्रमंदी से बाद में इसका दुपट्टा कंधे पर झूलते देख सख्त लहजे में बोला तो जोनिश ने जल्दी से दुपट्टा सर पर जमाया था। बोला क्या बात करनी है? वो इसे अब हाथ मसलते नर्वस पड़ते देख नरमी से बोला तो जोनिश इसे नर्म पड़ते देख नाराज़गी जताते मुंह बनाया। अभी आपने डांटा मुझे। वो नाक सुखेरते मुंह फेर गई तो अरियान ने गहरी सांस भरी। उफ जू बेबी, डांटा थोड़ी था, समझाया था, और अब जल्दी से बताओ क्या बात करने के लिए तुम यहाँ आई हो? वो इसे मोहब्बत से देखते हुए बोला तो जोनिश ने भी एक दफ़ा नाराज़गी साइड पर रख दी। वो आप आज ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हमने आज घूमने भी जाना है। वो इसे सिर्फ ये याद करवाने आई थी। अरियान इसे घूर भी ना सका। जी जू बेबी, मुझे याद है और मैं जल्दी भी आ जाऊँगा, अब तुम जाओ। वो इसके माथे पर लब रखते हुए बोला। ओके ठीक है अली, अल्लाह हाफ़िज़। जोनिश जल्दी से अपनी एड़ियाँ उठाकर इसके चीक्स पर किस करती हुई अंदर की तरफ चली गई तो अरियान हमेशा की तरह स्टिल हो गया। उफ जू बेबी, हमेशा ज़्यादती कर जाती हो मेरे साथ। आज ही तुम्हारे भाई से रुखसती की बात करता हूँ, वरना तुम मुझे ऐसे ही पागल कर दोगी। वो अपने गाल पर अभी तक इसके नरम गर्म होठों को महसूस करते मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। हुमायूं, ये मिस एमन है, आज से ये तुम्हें गाइड करेगी। अज़लान एमन को अपने ऑफिस बुलाकर हुमायूं को बताते हुए बोला तो जहाँ पर एमन इस दिन वाले लड़के को देखकर हैरान हुई थी, वहीं पर हुमायूं के माथे पर भी अनगिनत बल पड़े थे। और मिस एमन, ये मेरा भाई ही है, तो आपने इसे अच्छे से गाइड करना है। अज़लान इस बार एमन को देखते हुए बोला, जो अज़लान की बात सुनते अब थूक निकल रही थी। जी सर। एमन सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ बोली। हुमायूं को इसका ऑफिस भी दिखा दो। हुमायूं को इसके साथ जाने का इशारा करते वो एमन से मुखातिब हुआ तो एमन हाँ में सर हिला गई। हुमायूं उठकर अज़लान के ऑफिस से निकल गया तो एमन भी जल्दी से इसके पीछे लपकी। सर इस तरफ। वो हिचकिचाते इसे ऑफिस दिखाती हुई बोली तो हुमायूं ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। आई एम सॉरी सर, इस दिन के लिए। एमन इसके सामने सर झुकाए हुए बोली थी। इसने माफ़ी मांगना ही बेहतर समझा। हुमायूं ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते अपनी नज़रें इधर उधर
पर दौड़ाईं। मिस XYZ, जो भी नाम है आपका, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी भेजें। हुमायूं अपने सामने खड़ी लड़की को देखते मुखातिब हुआ तो एमन ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था और ऑफिस से बाहर निकली थी। ऑफिस के बाहर निकलते ही इसने अपनी अटकी हुई सांस बहाल की और गहरे सांस भरने लगी। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं, प्लीज़ मदद कीजिएगा। वो अफरा तफरी में इसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी। सर, ये आपकी कॉफ़ी। वो हल्का सा मुस्कुराते कॉफ़ी इसके टेबल पर रखते हुए बोली तो हुमायूं ने हाँ में सर हिलाया। सर, मैं जाऊँ? एमन इससे मुखातिब हुए बोली। नहीं, आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ कर कॉफ़ी पिएँ। हुमायूं इसे देखते इस्तज़ाइया अंदाज में बोला। जी सर। वो नासमझी से इसे देखने लगी। जाहिर सी बात है, आप यहाँ की ओनर तो हैं नहीं जो मेरे साथ कॉफ़ी पिएंगी, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हुमायूं ने भिगो कर तंज मारा था, जिसे एमन समझती अपनी मुठियाँ भींच गई। हुमायूं ने बगौर इसका ये एक्ट देखते अपने लबों को कॉफ़ी का मग लगाया था। एमन अपनी इतनी इंसल्ट पर अभी वहाँ से जाती जब हुमायूं की गरजदार आवाज़ इसके कानों में पड़ती। एमन के कदमों को वहीं पर रोक गई। व्हाट द हेल मिस XYZ, ये क्या बनाकर लाई हैं आप? हुमायूं ने कॉफ़ी का कप ज़मीन पर फेंकते एमन पर गुर्राते हुए बोला था कि एमन अपनी जगह से उछली थी। आंखों में मुकाबिल के इतने हार्श रिएक्ट पर खौफ उतरा था। सॉरी सर, मैं न्यू बनाकर लाती हूँ। एमन अभी फर्श पर बैठ कर वो कांच उठाती जब एक दफ़ा फिर हुमायूं की आवाज़ इसे लरसने पर मजबूर कर गई। अभी और इसी वक्त मुझे एक हॉट स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी अपने टेबल पर चाहिए, इसलिए इसको छोड़कर आप वो लेकर आएँ। हुमायूं दबे दबे लहजे में गुर्राते हुए बोला तो एमन वो कांच वहीं छोड़ती जल्दी से इसके ऑफिस से बाहर निकली थी। अपनी इतनी इंसल्ट पर आंखों में आंसू जमा हुए थे, जिन्हें वो हलक में उतारती इसके लिए नई कॉफ़ी बनाने लगी और कुछ ही देर में वो कॉफ़ी के साथ इसके ऑफिस में फिर से मौजूद थी। अजीब बदतमीज़ है, इतनी इंसल्ट की क्या ज़रूरत है? आराम से कह दे कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है, दूसरी ले आओ। स्टूपिड आदमी, मेरे सर पर रख दें आप। व्हाट द हेल? रख दो, मैं तो कह रही हूँ एमन, रख दो प्लीज़। इसे वही कॉफ़ी अपने हाथ में पकड़े देख वो तंजिया लहजे में दांत पीसते हुए बोला तो एमन ने जल्दी से कपकपाते हाथों से के साथ वो कॉफ़ी हुमायूं की टेबल पर रख दी। ऑफिस की सफाई के लिए किसी को भेजें जाकर। वो लैपटॉप खोलता मसरूफ़ अंदाज में बोला तो एमन बिना कुछ कहे इसके ऑफिस से निकल गई। पीछे वो कॉफ़ी वैसे ही ठंडी पड़ी रह गई। गुड़िया, आप तैयार हैं? वो हमना की तरफ देखते हुए बोला, जो इस वक्त जोनिश के साथ बैठी पता नहीं क्या बातें किए जा रही थी। हुमायूं ने सिर्फ हमना को ही नहीं मुखातिब किया, जबकि जोनिश की तरफ इसने आंख भरकर भी नहीं देखा। जी भाई, मैं रेडी हूँ, और जोनिश तुम भी मेरे साथ चलोगी, मेरी हेल्प करवा देना। हमना अपने भाई को कहते जोनिश से मुखातिब हुई कि हमना की बात सुनते सोफे से खड़ी हुई थी। हमना ने आज अपने भाई के साथ शॉपिंग पर जाना था। चूँकि वो यहीं पर रहने वाले थे तो हुमायूं इसे लेकर शॉपिंग पर जा रहा था ताकि वो अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें ले सके। लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? जोनिश इनकार करने वाले अंदाज में बोली। मेरी हेल्प करवानी है और क्या करना है, और मैंने ना नहीं सुननी। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। हमने ज़बरदस्ती इसे इसके रूम्स की तरफ भेजते हुए बोली तो जूनिश को नाचार जाना ही पड़ा, जबकि इसका बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा था। गुड़िया, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाइएगा आप लोग। हुमायूं हमना को कहता संजीदगी से पोर्च की तरफ बढ़ गया तो हमना भी जूनिश के आने का इंतज़ार करने लगी। हुमायूं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमना इसके साथ ही फर्स्ट सीट पर बैठी थी, जबकि जूनिश पिछली सीट पर बैठी हुई थी। हुमायूं ने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया हुआ था। इसने एक नज़र उठाकर भी जूनिश की तरफ नहीं देखा था। वो इसे अपने दिल से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चा प्यार इतनी जल्दी भूला थोड़ी जाता है, और हुमायूं भी इसी कैफियत में मुब्तला था। इसका दिल बार बार इसे उकसा रहा था कि वो एक दफ़ा नज़र भर कर इसे देख ले, लेकिन अब अगर इसने अपने दिल पर काबू ना पाते हुए इसे एक नज़र देख लिया तो गुनहगार ठहरा जाता। इसलिए इसने अपने दिल पर काबू पाते हुए अपनी सारी तवज्जो ड्राइविंग करने पर मरकूज़ की हुई थी, जब अचानक से गाड़ी एक झटके से रुकी। के पीछे बैठी जूनिश ने जल्दी से आगे की सीट का सहारा लेते खुद को बचाया था। क्या हुआ भाई? हुमायूं के साथ बैठी हमना से इस्तफसार किया। मुझे लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं देखता हूँ। हुमायूं गाड़ी से बाहर निकलते हुए आगे से गाड़ी को खोल कर इसे चेक करने लगा। हर तरफ खामोशी का राज था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। हम भी बाहर निकले या फिर यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है। पीछे से जूनिश हमना की सीट पर हाथ रखती हुई बोली तो हमना ने हाँ में सर हिलाकर अपनी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो जूनिश भी पीछे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। भैया, कब तक ठीक होगी? अपने भाई के पास ही पहुँचते वो इससे पूछने लगी, जबकि हुमायूं अभी भी गाड़ी में ही लगा हुआ था। जूनिश भी खामोशी से हमना के साथ खड़ी हो गई। जब इनके पास गाड़ी आकर रुकी, तीनों ने पलकें उठाकर रुकी हुई गाड़ी की तरफ देखा, जहाँ से सिराज पुलिस गाड़ी में मौजूद ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट ही पहने, सर पर ब्लैक कैप ही लिए गाड़ी से बाहर निकला था।
अस्सलाम वालेकुम, कोई प्रॉब्लम हुई है? वो हुमायूं से हाथ का मुसाफा करते हुए बोला, जबकि नज़रें इसके साथ खड़ी हुई इसकी बहन पर भी थीं, जो पता नहीं किस वजह से अपने भाई के पीछे छुप रही थी। सिराज की तेज़ निगाहों ने इसका ये एक्ट नोट किया था। हुमायूं इससे हाथ मिलाते साथ में सर हिला गया। जी, गाड़ी ख़राब हो गई है, हुमायूं ने बताते कंधे उचकाए थे। ये हुमायूं हमेशा गाड़ी ख़राब होते ही मिलता है इससे, सिराज से। जी, गाड़ी ख़राब हो गई है, हुमायूं ने बताते कंधे उचकाए थे। ओह, आ जाओ, आप लोगों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ जाना है? सिराज बोला, जब हुमायूं को अपनी शर्ट पर खिंचाव महसूस हुआ। इसने पलटते देखा तो हमना इसकी शर्ट पकड़े सर झुकाए खड़ी थी, जबकि दूसरा हाथ इसका जूनिश के हाथों में था। हुमायूं ने गहरी सांस भरते इसे अपने हिसार में लिया था। सिराज ने गहरी नज़रों से इस लड़की को देखा, जो शायद किसी चीज़ से घबराई खड़ी थी। इसने नोटिस किया था, इस लड़की ने ना ही इस दिन सिराज को आँख उठाकर देखा था, ना ही आज देखा। वो एक्चुअली मेरी बहन पुलिस वालों को देखकर डर जाती है, हुमायूं थोड़ा शर्मिंदा होते बता रहा था। और इसकी बात सुनते सिराज की आंखें फटी थीं। सिराज ने फ़ौरन अपने ऊपर नज़रें दौड़ाई थीं, अपने आप को पुलिस यूनिफॉर्म में ना पाकर सच शुक्र अदा किया था और एक नज़र अपनी गाड़ी की तरफ देखा, जो पुलिस वाली थी। सिराज को समझ ना आया वो क्या कहे। मतलब लड़कियां पुलिस वालों पर मरती हैं, और ये अनोखी लड़की थी जो पुलिस वालों से डरती है। वो अभी तक अपने भाई के हिसार में ही सर झुकाए खड़ी थी। जूनिश को भी सुनकर थोड़ी हैरानगी महसूस हुई थी। ये कौन सी लड़कियां जो पुलिस वालों पर मरती हैं? हाँ, नॉवेल्स के पुलिस वालों पर ज़रूर मरती हैं, रियल लाइफ के पुलिस वालों पर कोई नहीं मरता। सिराज ने छोटी सी घुरी डालकर इस मासूम लड़की को देखा था। इट्स ओके, आ जाएं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं। सिराज गहरी सांस भरते अपने बालों में हाथ फेरते बोला, तो हुमायूं ने हाँ में सर हिलाया और हमना की तरफ देखा, जो इसके सीने में छुपी नफ़ी में सर हिला रही थी। गुड़िया, ऐसे थोड़ी करते हैं, आपकी शॉपिंग भी तो करनी है ना। ये गाड़ी तो अब ख़राब हो गई है, अब आपकी शॉपिंग कैसे करेंगे फिर? इसलिए हमें लिफ्ट चाहिए, वो इसे समझा रहा था। आ जाओ हम पीछे बैठते हैं। जोनिश इसका हाथ पकड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ी, तो सिराज और हुमायूं भी गाड़ी की तरफ भर गए। सिराज गाड़ी ड्राइव करते मुसलसल सामने लगे मिरर से बार बार हमना को देख रहा था, जिसे जोनिश ने बातों में लगाया हुआ था। हमना को अपने ऊपर नज़रों का हिसार महसूस हुआ, तो इसने नज़रें उठाकर सबसे पहले मिरर में ही देखा था। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली थीं। सिराज को इस आंखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था, जबकि हमना का दिल तेज़ी से धड़का था, इसे अपनी तरफ ही तकता पाकर। दोनों ने फ़ौरन से एक दूसरे पर से अपनी अपनी निगाहें हटाई थीं। हमना दरवाजे के साथ चिपक कर बैठ गई। सिराज ने जब दरवाज़ा देखा तो वो इसे मिरर में से नज़र ना आई। इसकी चालाक सी हरकत पर इसके लब मुस्कुराए, तो इस बार इसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर ही लगाया था। नूर जूनिश किधर है? अरियान घर आया तो इसे जूनिश कहीं ना दिखाई दी, जिस पर वो इस बार नूर से पूछने लगा, जो लाउंज में बैठी शायद अजान के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो हमना के साथ गई है शॉपिंग पर। नूर अरियान को देखते बताने लगी। किसके साथ गई हैं? माथे पर तेवरी चढ़ाए नया सवाल पूछा। हुमायूं भाई के साथ। और इस बार माथे पर अनगिनत बल के साथ हाथों और गर्दन की रगें भी उभरी थीं, बदन में शरारे से फूटे थे। वो इसे बताए बगैर इस इंसान के साथ कैसे जा सकती है, जिससे अरियान को इसके लिए इनसिक्योरिटी महसूस होती है। अरियान ने के तासुरात ख़तरनाक हद तक बिगड़े। अभी वो वहाँ से वापस बाहर की तरफ जाता, जब वो इसे हमना और हुमायूं के साथ ही आती हुई दिखाई दी। अरियान की आंखों में खून उतरा। वो लंबे लंबे डग भरता जूनिश की तरफ बढ़ा, और जूनिश को समझने का मौका दिए बगैर इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेते वो इसे इन सब के दरमियान ही खींचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जिस पर जूनिश कटी हुई पतंग की तरह इसके साथ खींचती चली गई। अरियान की आंखें इस कदर सुस्त देखकर जूनिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। अरियान के एक्ट पर हमना के साथ साथ नूर ने भी अपनी आंखें फैलाई थीं, जबकि हुमायूं के तासुरात सपाट थे। जाओ गुड़िया, आप अपने कमरे में जाकर ये शॉपिंग देखो, वो हमना को कहता खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरियान भाई को क्या हुआ? हमना नूर के करीब आती हुई पूछने लगी, तो नूर हमना को देखकर मुस्कुराई। मुझे लगता है इसे जेलसी हुई है, वो शरारत से मुस्कुराते हुए हमना से बोली। तो हमना पहले तो ना समझी से इसे देखने लगी, लेकिन जब बात समझ आई तो वो भी खुलकर मुस्कुराई। मैं आपको कल अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, अभी मैं थक गई हूँ, हमना मासूमे से मुस्कुराते नूर को बोली। तो नूर मुस्कुराई। ओके, कल दिखा देना, अब आराम करो जाकर, और जू के लिए दुआ भी कर देना। वो फिर से हंसते हुए बोली, तो हमना भी खिलखिला कर हंसी और हाँ में सर हिलाते अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अज़लान लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी सोच के बरक्स नूर इसका इंतज़ार कर रही थी। अज़लान को खुशगवार हैरत हुई थी। वो धीरे से चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वो इसके कान के करीब झुकता इसके कान की लौ पर अपने लब रखते हुए बोला, तो नूर करंट खा कर पीछे पलटी थी। अरे, अज़लान को अपने सामने देख कर इसने लाउंज के चारों तरफ नज़रें दौड़ाई थीं।
किसी को ना पाकर इसने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए इस बार घूर कर अज़लान को देखा था। आपको शर्म नहीं आती?" लाउंज में इस तरह की हरकतें करते हुए वो इसको घूरती हुई बोली, जबकि ज़ुबान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाई थी। अज़लान ने इसका हाथ पकड़ते ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ा था कि नूर बौखलाई थी। रूम में लाते इसने दरवाज़ा लॉक करते इसे दरवाजे के साथ पिन किया। "वैसे तो मुझे नीचे भी शर्म नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारी शर्म का लिहाज करते मैं रूम में आ गया हूँ, तो अब यहाँ तो कर सकता हूँ ना वैसी हरकतें।" वो मानीखेजी से इसके दोनों अतराफ अपने बाजू टिकाते हुए बोला कि नूर का दिल तेज़ी से धड़का था। चेहरा इसकी बातों से ही सुर्ख हुआ था। अज़लान इसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर फूंक मारते अभी इस पर झुकता जब नूर ने जल्दी से इसके लबों पर अपना हाथ रखा था। वो मैं ये कह रही थी कि आपके लिए अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती जब मुकाबिल ने इसके हाथ पर अपने लबों के साथ दांतों का दबाव बढ़ाते इसे सिसकते हुए जल्दी से अपना हाथ खींचने पर मजबूर किया था। "मेरी जान, ये फजूल की मज़ाहमतें मेरे सामने ना किया करो, वरना फिर तुम अभी अपने शौहर को जानती नहीं हो, वो क्या कर सकता है।" वो इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेते इसके सर के ऊपर ही पिन करते इसके चेहरे के करीब झुकते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ते बोला, तो नूर को अपने चेहरे से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। अज़लान बिना ताख़ीर किए इसके लबों पर झुका था कि नूर ने अपनी आंखें ज़ोर से मींची थीं। दिल की धड़कनें तेज़ होती इसे अपने कानों में महसूस हुईं। अज़लान के अंदाज में शिद्दत दर आई थी, जिस पर नूर ने मज़ाहमत करते अपने बाजू छुड़वाने चाहे तो अज़लान शिद्दत से इसके लब चूमते इसके बाजू को छोड़ते पीछे हटा था। नूर ने फ़ौरन से अपना सर इसके सीने पर टिकाया था और गहरे सांस लेती अपनी सांसों को हमवार करने लगी। "हाँ जी, अब बताओ, तुम मुझे कुछ कह रही थीं?" अज़लान इसकी कमर सहलाते हुए बोला। कुछ नहीं।" वो अभी भी तेज़ सांस लेती हुई बोली थी। अज़लान मुस्कुराया। "कुछ खा पी लिया करो, वरना किसी दिन मेरे हाथों वाकई ही तुमने ऊपर पहुंच जाना है।" वो मुस्कुराते अपना चेहरा नीचे करते ज़ुमानी अंदाज में इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो नूर का चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। "अच्छा चलो, अब चेहरा बाहर भी निकाल लो।" इसने खुद ही इसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकाला तो नूर की पलकें झुकी हुई थीं। चेहरा इसकी गुर्बत के रंगों से बिखरा हुआ था। अज़लान को इस पर और शिद्दत से प्यार आया तो वो इसके माथे पर अपने लब शिद्दत से रख गया। "चलो जाओ, मेरा ड्रेस निकालो, वरना मैंने तुम्हें अब वाकई ही खा जाना है यहाँ से।" वो इसके चीख को अपने दांतों में भर कर छोड़ते हुए बोला, तो नूर 200 की स्पीड से इसकी नज़रों से ओझल हुई थी। अज़लान इसकी स्पीड पर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर गया। अरियान जूनिश को कमरे में लाते ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके इसे कमरे के बीच में खड़ा किया, जबकि जूनिश बमुश्किल ही अपने चकराते सर को संभालती खड़ी हुई थी। अरियान ने सर दंगारा निगाहें अपने वजूद पर महसूस करती इसके बदन में सनसनाहट दौड़ी थी। वो सहमी हुई नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। गला खुश्क पड़ा हुआ था, जैसे वो बार बार थूक निकलते नम कर रही थी। अरियान की खून अलविदा खून शाम निगाहें इसे कपकपाने पर मजबूर कर रही थीं। "कहाँ गई थी तुम?" वो इसके दोनों बाजू को पकड़ते सख्त बर्फीले लहजे में बोलता इसके चेहरे पर गुर्राया था कि जूनिश के अपनी दोनों आंखें मींचते हुए इस तूफान को टल जाने का कहा था। इसके जवाब ना देने पर वो फिर से गुर्राते हुए इसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। "मैंने पूछा, कहाँ गई थी तुम?" अली, मैं हमना के साथ गई थी।" जूनिश आंखें मींचती कपकपाते लहजे में बोली थी। दिल अरियान के इतने हार्श रिएक्शन पर थर थर काँप रहा था, जैसे कि धड़कन इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हमना के साथ इसका भाई भी था, जूनिश। वो इंतहाई गुस्से से इसे एक झटके से छूटते हुए बोला था कि जूनिश मुश्किल से ही खुद को गिरने से बचा पाई थी। आंखों में मोटे मोटे आंसुओं ने जगह बनाई थी। वो बेयकीनी के साथ डर और खौफ से अरियान की तरफ देखने लगी थी, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश के लिए अपने बालों में हाथ फेर रहा था। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सफ़ेद से सुर्ख पड़ चुका था। जूनिश को डर और बेयकीनी से अपनी तरफ तकतपा कर वो फिर से इसकी तरफ बढ़ा था कि जूनिश ने इस बार खौफ से अपने कदम पीछे लिए थे। अरियान ने एक जस्ट में इसे फिर से बाजू से पकड़ते अपने सामने खड़ा किया था। "जूनिश, जानती हो मुझे इस शख्स को देखकर कितनी नफरत महसूस होती है, जो तुम्हें मेरी होने के बावजूद मांग रहा था, और तुम इसके साथ बाहर गई थी। देखो मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है।" अरियान इसे झंझोड़ते हुए बोलते आखिर में इसका हाथ थाम कर अपने दिल पर रखता बेबसी से बोला था। वो आज इसे बार बार जूनिश कहकर पुकार रहा था, जिस पर जूनिश को अपने दिल के किसी हिस्से में तकलीफ़ महसूस हो रही थी। अपने नाजुक हाथ के नीचे इसने अरियान के धड़कते दिल को महसूस
محسوس کیا تھا اور اسے لگا تھا کہ شاید اریان کا دل اس کے دل سے زیادہ زور سے دھڑک رہا ہے۔ آنکھوں میں موجود آنسو لڑیوں کی طرح گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ علی، میں جان بوجھ کر نہیں گئی تھی، ہمنا مجھے لے کر گئی تھی اپنے ساتھ۔ وہ ہچکی بھرتے ہوئے اپنا نازک کپکپاتا ہاتھ اریان کے دل کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس پر اریان نے اپنی گرفت اس کے ہاتھوں پر مضبوط کی۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس انسان کو اس دنیا سے رخصت کر دوں، میں کسی قیمت پر اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اریان اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولتا اسے اپنے دل کی کیفیت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ہمایوں کا اس کے ساتھ سنتے ہوئے ہوئی تھی، جبکہ زونش آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ زونش غلط ہے، کیونکہ جب اسے پتہ ہے کہ ہمایوں نے اس کے لیے پروپوزل بھیجا اور اتنی اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جو بھی ہوا، تو اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ بے شک ہمنا کے لیے گئی تھی، بٹ اسٹل آئی ایم سوری علی، میں آئندہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی اپنا نازک سا حصار اس کے گرد قائم کر گئی کہ اریان نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ اس کے گلے لگتے ہی اسے اپنے اندر سکون کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سرد پن اترتے ہوئے فوراً نرمی اختیار کر گیا تھا، تو اریان نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتے اسے شدت پسندی سے اپنے حصار میں قید کیا تھا کہ زونش کرراہ کے رہ گئی۔ تم کبھی بھی مجھ سے دور نہ جانا زو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تم کبھی مجھ سے دور گئیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس شدت پسندی سے اپنے حصار میں بھیجتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا، جبکہ اس کی باتوں سے زونش ایک دفعہ پھر گھبرا گئی تھی۔ علی، میں تو آپ کے پاس ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، اور اب آپ مجھے چھوڑ دیں ورنہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اسے معصومیت سے کہتی ہوئی آخر میں اسے چھوڑنے کا بھی بول رہی تھی۔ اریان نے غصے سے اس کے سر کو ہی گھورا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے چھوڑ دو۔ اریان شکوہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس بار اس نے اپنا حصار اس کے گرد ڈھیلا کر دیا تھا، جس پر زونش نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے نکالتے ہوئے معصوم سی گھوری سے نوازا۔ اریان اس کی گھوری پر سرشار ہوا تھا، لیکن بدلے میں اس نے بھی اسے گھورا۔ زو، جتنا اس وقت میں غصے میں تھا، میرا دل کر رہا تھا میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ اسے اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا کہ زونش نے حیرت سے منہ کھولتے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری تھی، جسے اریان نے دیکھتے ہوئے فوراً سے نمی کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ آپ مجھے مار دیتے ہیں علی؟ وہ معصوم پتہ نہیں پوچھ رہی تھی یا اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اریان نے مسکراہٹ ضبط کی، جی بالکل مار دیتا، اور جانتی ہو میں نے مارنا کیسے تھا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ زونش نے منہ بنایا، میں نے نہیں جاننا آپ نے کیسے مارنا تھا، آپ بہت برے ہیں، اور اب تو پکا ہی چھوڑے مجھے۔ غصے سے ناک پھلاتی ہوئی مزاحمت کرتی بولی، تو اریان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اپنے گرم سلگتے لب اس کی گردن پر رکھے تھے کہ زونش کی ساری مزاحمت ایک پل میں اڑی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی، دل کی سپیڈ ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ اریان اپنے لب رکھتے ہوئے اب وہاں دانتوں کا دباؤ بھی بڑھانے لگا۔ زونش کی جان ہوا ہوئی، وہ سسک کر کسمساتے ہوئے اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ اریان نے شدت سے اپنے دانتوں کا دباؤ دیتے اسے اپنے سے دور کیا تھا کہ زونش کرراہ کر رہ گئی تھی۔ اتنی شدت پسندی پر آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے دیے گئے لمس پر لے جاتی وہاں رکھ گئی جہاں پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ یہ بار بار مزاحمت کرنے کی اور مجھے چھوڑ کر جانے کی سزا تھی، وہ اپنے انگوٹھے سے اس کی گردن سہلاتے ہوئے بولا تھا، جہاں پر آب و تاب سے اس کے دانتوں کا نشان چمک رہا تھا۔ زونش نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ بہت زیادہ گندے، برے، بدتمیز اور بے شرم انسان ہیں، وہ منہ کے زاویہ بگاڑتی انتہائی غصے سے بولی تھی۔ اور زو بیبی کو غصہ آ رہا ہے، چلو تم بھی اپنا غصہ نکال لو، جانتی ہو نا پچھلی دفعہ کس طرح تم نے اپنا غصہ نکالا تھا، آج بھی ویسے ہی نکال لو۔ وہ اپنی چیکس اس کے سامنے کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولتا زونش کو تھوک نکلنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، مجھے نہیں نکالنا، آپ چھوڑیں مجھے نیچے جانا ہے، وہ نظریں جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں نکالنا تو مجھے نکالنے دو اچھے سے، وہ شرارت سے کہتے ہوئے بولا، تو زونش گھبرائی تھی۔ نہیں علی، میں نکالتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی کہ اریان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اوکے زو بیبی، یہ لو، نکالو اپنا غصہ، وہ اپنا گال پر پھر سے آگے کرتے ہوئے بولا، تو زونش کو اپنا دل کانوں میں
में धड़कता हुआ महसूस हुआ। पिछली दफ़ा तो इसने बेख्तियार की थी, आज जानबूझकर कर रही थी। जूनिश की पलकें लरजने लगी थीं। वो झुकती पहले आहिस्ता से अपने दांत रखे, लेकिन जैसे ही इसे अभी थोड़ी देर पहले अरियान का लम्स याद आया तो जूनिश ने भी अपने तेज़ दांत इसकी बियर्ड वाली गाल पर खबो दिए थे। अरियान के दर्द से आंखें मीची थीं, लेकिन इसे ये मीठा सा दर्द सुकून पहुंचा गया था। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटी तो अरियान के गाल पर इसके तेज़ दांतों का निशान था। जूनिश शर्मिंदगी से सर झुका गई तो अरियान ने मुस्कुराते इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते ऊपर किया और अपने लब इसके माथे पर शिद्दत से रखे। अब मैं जाऊं? वो इजाज़त मांगते हुए बोली। ओके जू बेबी, लेकिन इससे पहले मेरा ड्रेस निकाल दो, मैं शावर ले लूं। वो इसे छोड़ते हुए बोला तो जूनिश ने भी जल्दी से हाँ में सर हिलाया था और अरियान ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। मैं चाहता हूँ, बच्चों का निकाह तो हुआ ही है, एक घर में रहते हैं तो इनकी अब रुखसती भी हो जाए। दादी संजीदगी से सबकी तरफ देखते हुए बोले तो अज़लान ने हैरानगी से दादी की तरफ देखा जो अरियान और जूनिश की रुखसती की बात कर रहे थे। अज़लान ने एक नज़र दादी की तरफ देखते अरियान की तरफ देखा जो दादी की बात सुनते चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ले आया था। जूनिश की पलकों के साथ हाथ भी लरसने लगे थे। अज़लान ने मशकूक नज़रों से अरियान की तरफ देखा जो इसे पुरसुकून नज़र आ रहा था। ये तुमने कहा है दादी को? अज़लान अरियान को गुस्से से घूरते हुए बोला तो जिस पर अरियान ने चौंकते हुए अज़लान की तरफ देखा और थूक निकला। जी भाई, वो दादी के कहने पर, अरियान मिनमिनाते हुए बोला था, जिस पर अज़लान ने इसे शदीद घूरी से नवाजा था। दादी, पहले मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ। अज़लान अरियान को घूरते हुए बोला तो अरियान के साथ बाकी सब की नज़रें भी जूनिश पर उठी कि वो अपनी जगह कन्फ्यूज़ होती हाथों को मरोड़ने लगी। भाई, जैसा आपको बेहतर लगे, वो जल्दी से कहती नज़रें झुका गई। अज़लान के होठों पर मुस्कुराहट आई और जताने वाले अंदाज में अरियान की तरफ देखा। अरियान बदमज़ा हुआ। तो बस ठीक है, अगले हफ्ते इनकी शादी की तारीख रखते हैं, सिर्फ रुखसती और वलीमा होगा। दादी ने जूनिश की बात सुनते ही अपना फैसला सुनाया था जिस पर सब ही मुत्तफिक हुए थे, जबकि लड़कियां तो घर में शादी का सुनकर ही खुश हो गई थीं। आए जनाब, आपको हमारे घर का रास्ता कैसे मिल गया? सिराज अज़लान के बगलगीर होता शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। खुशफहमियाँ निकालो, तुमसे नहीं मिलने आया मैं, अज़लान सुलगाने वाले अंदाज में बोला था। सिराज ने गुस्से से घूरते सर झटका। यही उम्मीद हो सकती थी तुझसे, तुमसे अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे इस ख़ास दुश्मन से ही दोस्ती कर लेता जो 24 घंटे मेरे घर रहता है। सिराज भी बराबर इसे सुलगाने वाले अंदाज में बोला था कि अज़लान ने इसे खुशमगीन निगाहों से देखा था। अल्लाह तुम जैसे दोस्त तो किसी को ना दे जो दोस्त के दुश्मन से दोस्ती का ख्वाहिशमंद हो। अज़लान इसकी कमर पर मुक्का रसीद करते हुए घर के अंदर मौजूद बेसमेंट की तरफ बढ़ा था तो सिराज भी अपने कहकहे का गला घोंटते इसके पीछे ही बेसमेंट की तरफ बढ़ा। अज़लान इस हॉल नुमा बंद कमरे में दाखिल हुआ तो सिराज ने पीछे आते स्विच बटन ऑन किया। चारों जानिब रोशनी फैली। वहीं पर वो रोशनी किसी की आंखों में चुभती हुई इसकी आंखें मज़ीद सख्ती से बंद करवा गई। अज़लान चलता हुआ इसके सामने मौजूद चेयर पर बैठा और सर्द बर्फीले तासुरात के से सामने रस्सियों में जकड़े ज़ीशान को देखने लगा। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते ज़ीशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली थीं तो अज़लान को अपने सामने देखते एक दफ़ा फिर से इसके पूरे बदन में खौफ उतरा था। आंखों में खौफ लिए वो इसके तासुरात जानने की कोशिश करने लगा। अपनी पुरानी चोटों पर इसे एक दफ़ा फिर से दर्द की लहरें उठती हुई महसूस हुईं जैसे कुछ दिन पहले ही अज़लान दे कर गया था और अब फिर वो इसके सामने था। ज़ीशान के रोंगटे खड़े होने लगे। ज़ीशान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अज़लान चेयर से थोड़ा आगे को झुकता इसके नीले धब्बों से सजा चेहरा अपने हाथ की गिरफ्त में लेता इधर उधर करके देखने लगा जैसे इसके ज़ख्म जानना चाह रहा हो। ज़ीशान के बदन में सनसनाहट दौड़ी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो, वो खौफ के ज़ेरे असर इसे देखते बोला। अज़लान के चेहरे पर नागवारी की लहर दौड़ी। लगता है तबीयत ठीक हो गई है, तभी इतनी बकबक कर रहे हो। अज़लान इसके जबड़े को एक झटके से छोड़ता फिर से चेयर पर टेक लगा कर बैठता पुरसुकून अंदाज में बोला। सिराज, आज कुछ नई सज़ा दी जाए, इसे क्या ख्याल है तुम्हारा? अज़लान पुरसुकून अंदाज में बोलता ज़ीशान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर गया। इसकी सज़ाओं को अब ज़ीशान अच्छे से जानता था। तभी ये सुनते पूरा बदन कपकपाने लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाते हुए अपने आप को इन रस्सियों से आज़ाद करवाने लगा। कौन सी सज़ा? सिराज इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए बोला। गर्म पानी का बाउल लेकर आओ। अज़लान के ये कहने की ही देर थी
जब ज़ीशान पूरी तरह झटपटाते हुए अपने आप को आज़ाद करवाने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते अज़ान की मिन्नतों पर उतर आया था, जबकि सिराज हाँ में सर हिलाते हुए वापस से मुर्दा कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही वो अपने हाथ में गर्म पानी का बाउल लाते हुए अज़ान के आगे मौजूद ज़मीन पर रख गया, हाथों को खोल कर पीछे बांध इसके। सिराज को नया हुक्म देता वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था, और फिर कुछ ही लम्हे बाद ज़ीशान की चीखें इस बेसमेंट में गूंज रही थीं। अज़ान इंतहाई सफाकी से इसके सर को पीछे से पकड़कर चेहरा इस गर्म पानी में डिबो रहा था। ज़ीशान की दिलखराश चीखें गूंज रही थीं, जिस पर सिराज एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते गैर कानूनी काम अपनी आंखों के सामने ना देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। तकरीबन पूरे आधे घंटे तक इसकी चीखें इस बेसमेंट में गूंजती रही थीं। अपनी शर्ट को झाड़ता वो आधे घंटे बाद बेसमेंट से बाहर निकला तो सिराज इत्मीनान से डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। इसे खाना खाते देखा तो अज़लान घूरता हुआ इसके करीब ही आ गया। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आती एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर इसके सामने ही गैर कानूनी काम करते हुए? सिराज इसे घूरते हुए अपना निवाला मुंह में डाल गया। इस लफ्ज़ से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और चल कर बांध इसे। हर वक्त खाने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे। अज़लान खुद डाइनिंग टेबल पर बैठकर इसका खाना अपनी तरफ खिसका गया कि सिराज इसे हैरत से घूरता ही रह गया। जैसी तुम इसकी हालत करके आए हो, तुम्हें अभी भी लगता है वो भाग जाएगा? पता नहीं वो इस पर तंज कर रहा था या इसे बता रहा था, लेकिन अज़लान को वो तंज ही लगा, इसलिए खूनख्वार नज़रों से घूरा। बकवास न कर, निकल यहाँ से, वो बाइट मुंह में डालते बोला तो सिराज इसे घूरते हुए वहाँ से बेसमेंट की तरफ चला गया, जहाँ पर अब ज़ीशान बेहोश हो चुका था। मिस एमन को बुलाएं। हुमायूं अपने ऑफिस में बैठा सामने मौजूद मुलाजिम से एमन को बुलाने का इशारा किया तो वो जी सर कहता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद एमन इसके ऑफिस में मौजूद थी। जी सर, आपने बुलाया? वो हुमायूं का बिगड़ा तेवर देखकर थोड़ा घबराए हुए लहजे में बोली तो हुमायूं ने अपने सामने मौजूद इस लड़की को खुशमगीन निगाहों से देखा था। एमन इसे देखते ही थूक निकलने लगी। मिस एमन, मुझे लगता है भाई ने आपको मुझे गाइड करने के लिए मेरी असिस्टेंट रखा था, लेकिन ये फ़ाइल देखकर लग रहा है कि आपको गाइड करने के लिए मुझे किसी और असिस्टेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। हुमायूं इंतहाई गुस्से से अपने सामने मौजूद फ़ाइल इसकी तरफ फेंकते घुर्रा कर बोला था कि एमन डरते हुए पीछे हटी। फ़ाइल में मौजूद तमाम पेपर निकलकर फर्श पर बिखर गए थे। इतनी इंसल्ट पर आंखों में नमी चमकी तो सर नीचे झुका दिया। सॉरी सर, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, वो नज़रें झुकाए अपनी कांपती आवाज़ को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी। हुमायूं इस बिना फिजूल के रोते देख इसे गुस्से से देखते अपनी मुठियाँ भींच गया। व्हाट सॉरी, अगर ऐसे ही काम करना है तो घर बैठ जाएं। हुमायूं को शुरू से ही ये लड़की कुछ खास पसंद नहीं थी, तभी इंसल्ट करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसकी बात सुनती एमन जल्दी से सर उठाती भीगी आंखों के साथ नफ़ी में सर हिला गई। इसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को देखकर हुमायूं ने अपनी नज़रें फेरी। नहीं नहीं सर, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अपने गालों पर लुढ़कते आंसुओं को हाथ की मदद से बेदर्दी से रगड़ते हुए भर्राई आवाज़ में बोली तो इस बार हुमायूं को थोड़ी सी गिल्टी फील हुई। जाए मिस एमन, लेकिन आइंदा से ख्याल रखिएगा, मैं बार बार गलती की माफ़ी नहीं देता। वो इसे देखे बिना कहते अपना लैपटॉप खोल गया तो एमन ने एक नज़र इसे देखा। आंखों में आंसू अभी भी चमक रहे थे, और फिर वो जल्दी से हुमायूं के ऑफिस से बाहर निकली थी। इसके जाते ही हुमायूं ने ऑफिस के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से वो रोते हुए निकली थी। हुमायूं दरवाजे की तरफ देखते सर झटक गया और उठकर नीचे मौजूद फर्श पर गिरे वो पेपर उठाने लगा जो थोड़ी देर पहले इसने फेंके थे। अजीब बदतमीज़, अगर वो पसंद नहीं है तो क्या हुआ, तमीज़ से बात नहीं कर सकते? एम्प्लॉय है वो, ये ग़ुलाम नहीं है। बदतमीज़ आदमी। ज़ियान, मुझे आपसे बात करनी है, वो बेड पर बैठी ज़ियान को देखते हुए बोली। जी जाने ज़ियान, बोलें क्या बात करनी है? वो लैपटॉप को फ़ौरन बंद करके पूरी तरह से इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला था। मैंने पूछना था कि कल आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे ना, ज़ू की शादी के लिए? वो इसे इस तरह से अपनी तरफ तवज्जो से तकते पा कर बौखलाते हुए बोली थी, और ज़ियान इसकी बात सुनता गहरा मुस्कुराया था। ले तो मैं चलूँगा, लेकिन मैंने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की। वो हामी भरने के साथ इसे बताने भी लगा, और ये सच था, ज़ियान को लेडीज़ शॉपिंग का ना ही कोई आइडिया था और ना ही इसने कभी की थी। लेकिन शादी के बाद तो इंसान को हर वो काम भी करना पड़ता है जो इसने आज से पहले ना किया हो, जैसे ज़ियान ने अपनी बीवी की शॉपिंग करनी थी।
میں خود کر لوں گی، آپ بس میرے ساتھ چلیے گا۔ وہ معصومیت سے اسے بتانے لگی کہ وہ اپنی شاپنگ خود کرے گی، بس اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو یہی کافی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ جائے اور بیوی خود اپنی پسند کی شاپنگ کرے؟ میں کروں گا، لیکن پھر آپ کو میری پسند پہننی بھی پڑے گی۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا تو عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو اب چھوٹی سی کسی ہی دے دو۔ اس بار زیان شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عائشہ اس کی بات پر بوکھلائی۔ آئے روز وہ اب اس سے ایک چھوٹی سی کسی مانگتا ہی رہتا تھا، اور اگر عائشہ نہ دے تو وہ اپنی دھمکیوں پر اتر آتا تھا۔ عائشہ نے معصوم سا چہرہ بنایا کہ شاید اس کا شوہر اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بات سے انکار ہو جائے۔ اگر اس طرح کے کیوٹ فیس بنائے گی تو آپ کے شوہر کو اور پیار آئے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر بنائیں۔ اس کے کہنے پر عائشہ فوراً سے سرخ پڑتی سر جھکا گئی تھی۔ چلیں اب کر دیں، اتنا انتظار نہیں کر سکتا میں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے اپنے حصار میں لیتے بولا تو عائشہ کو ناچار اپنے لب اس کی چیکس پر رکھنے ہی پڑے۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ اس نے اسے اپنے حصار میں بھیجتے اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا تو عائشہ نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ یہ آپ کا ہاتھ کیوں اتنا ریڈ ہے؟ وہ اذان کے سرخ ہوتے ہاتھ کو دیکھتے بولی، جو شاید ذیشان کا چہرہ گرم پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اذان نے چونکتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو واقعی ہی کچھ جگہوں سے ریڈ ہوا پڑا تھا۔ اس نے نور کے چہرے پر نظریں دوڑائیں جو نہایت فکر مندی سے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتی ان پر آہستہ آہستہ پھونک مار رہی تھی۔ اذان کا دل ایک دم سے پرسکون ہوا۔ نور کا اپنے لیے فکر مند ہونا اذان کو اندر تک سرشار کر دیتا تھا، اور اس بار بھی نور اس کی چھوٹی سی چوٹ پر ہی حد سے زیادہ فکر مند ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں یاد، درد بھی نہیں ہو رہا۔ اذان اپنا دوسرا ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ نور نے اسے چھوٹی سی گھوری سے نوازا۔ اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ ریڈ ہوا پڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس بار وہ اپنے دوپٹے کو پکڑتی اس پر اپنی پھونکیں مار کر گرم کرتی اذان کے ہاتھ پر موجود ریڈ نشانوں پر رکھنے لگی، اور اذان کا دل اس کی ہر ادا پر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ اذان کی آنکھوں میں محبت کے جذبات چھانے لگے تھے۔ نور کا اپنے لیے، محض اپنے لیے اتنا پریشان ہونا اذان کو اس کا اسیر بنا رہا تھا۔ یار اتنی بھی چوٹ نہیں ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو، ادھر آؤ۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتے اپنے پاس ہی بیڈ پر گراتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ نور جو دوپٹے کو پھونک مار کر گرم کر رہی تھی، اس کے گرنے پر نور کے چہرے پر آیا تھا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ پلیز مجھے دیکھنے دیں۔ وہ ابھی تک اس کی اس معمولی سی چوٹ پر پریشان تھی۔ اذان نے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھے تھے۔ نور کا تیزی سے دھڑکتا دل دھڑکا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی وہ اذان کے حصار میں قید ہو چکی ہے۔ وہ گھبرائے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چہرے پر اب گلال بکھرا تھا جو اذان کے چہرے پر مسکراہٹ کا ذریعہ بنا۔ ہوش آ گیا میڈم کو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے مسکراہٹ ضبط کرتے بولا، اور نور بس اب اسے تیزی سے اٹھتی جھکتی پلکوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ سچ میں آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اب بھی اسے چوٹ کا احساس دلاتے پیچھے ہٹنے کا بول رہی تھی جب اذان اس پر گھٹا کی طرح چھایا تھا کہ نور مکمل اس کے حصار میں چھپ گئی تھی۔ دل پسیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اذان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا کہ نور نے زور سے اپنی آنکھیں میچیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بیئرڈ کی چبھن پر نور کے بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اذان اپنے سلگتے لب اس کی گردن سے چہرے کی طرف لایا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے لب جا بجا رکھتا وہ اپنی بیئرڈ کی چبھن بھی چھوڑتا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ علی مجھے بھی جانا ہے شاپنگ کرنے۔ زونش زیان اور عائشہ کے جانے کے بعد اریان سے مخاطب ہوئی جو آج گھر ہی موجود تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زیان اور عائشہ شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے، جنہیں دیکھتے اب وہ منہ بنائے اریان کو کہنے لگی۔ اس کی بات پر اریان جو فون سکرول کرنے میں مصروف تھا آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے ساتھ جڑ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تو چلیں گے نا زو؟ لیکن ابھی نہیں، 2 دن بعد، وہ اسے کہتے ہوئے بولا، جس پر زونش کے چہرے پر خفگی چھائی۔ نہیں علی مجھے ابھی جانا ہے، میں نے بھی اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے۔ وہ خفگی سے منہ پھلائے ضدی انداز میں بولی۔ زو بیبی کل پکا لے کر جاؤں گا، آج مجھے تھوڑا سا کام ہے۔ اریان نے اس بار اسے پیار سے سمجھانا چاہا تو زونش خفگی سے اس سے رخ موڑ گئی۔ ٹھیک ہے آپ نہ لے کر جائیں، میں اکیلی نور آپی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ ناراضگی جتاتی وہاں سے اٹھنے لگی جب اریان نے اسے بازو سے پکڑتے دوبارہ بٹھایا۔ زو بیبی تمہاری نور آپی اب تمہارے بھائی کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کر سکتی، اور تمہارے ساتھ اکیلے تو بالکل نہیں جا سکتی، اس لیے میں تمہیں کل لے جاؤں گا۔
اب تم جاओ اپنے روم میں۔ وہ پہلے اسے نور کا بتاتا پھر سے اسے انکار کر گیا، جس پر زونش سچ میں اس سے ناراض ہوتی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیتی وہاں سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگ گئی کہ اریان اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر تڑپ گیا۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل وہیں ٹیبل پر رکھتا زونش کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ زو بیبی، اچھا سوری، میں ابھی لے کر چلتا ہوں اپنے زو بیبی کو۔ دروازہ تو کھولو نا میرا بچہ۔ ایک تو دس از ویری کرنج کالنگ یور پارٹنر میرا بچہ. شی از ناٹ یور بچہ. اوکے، عجیب، اسٹوپڈ. وہ دروازے کے سامنے کھڑا اضطرابی کیفیت میں بول رہا تھا۔ زونش کا روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ جانا ریان کا دل تڑپا گیا تھا۔ اس کے پکارنے پر بھی زونش نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا۔ زو، اب تم اپنے علی کی بات نہیں مانو گی؟ وہ دروازے کو نوک کرتے جھنجھلاتے لہجے میں بولا تو اس بار اسے اندر سے زونش کی سوں سوں کرتی آواز سنائی دی۔ ریان اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ تو آپ بھی تو اپنے زو بیبی کی بات نہیں مان رہے تھے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں سوں سوں کرتے بتانے لگی۔ یار زو بیبی، پلیز پلیز، سوری، آ جاؤ، ابھی چلتے ہیں شاپنگ پر۔ بلکہ تم تو برائڈل ہو نا، اچھی اچھی چیزیں لے کر دوں گا میں اپنے زو بیبی کی۔ دروازہ کھولو نا زو بیبی۔ وہ اسے منانے کے ساتھ لالچ دینے والے انداز میں بھی بولا تو اگلے ہی منٹ میں دروازہ کھل گیا، جبکہ زونش ابھی بھی دوسری طرف منہ کیے خفگی سے کھڑی تھی۔ میرا زو بچہ، وہ اسے پیچھے سے ہی ہگ کرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تو زونش نخرے کرتے اپنے گرد بندھے اس کے بازو چھڑوانے لگی، جس پر اریان نے اس کے بازو کو بھی فولڈ کرتے اپنے حصار میں لے لیا۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ نہیں لاتے زو بیبی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کو چھوتے بولا، ایک ہاتھ اب بھی اس کے گرد بندھا ہوا تھا۔ بات مت کریں آپ مجھ سے علی، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ وہ معصوم سے لہجے میں غصے سے بولی تو اریان کا دل کیا وہ اپنے زو بیبی کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح اپنے حصار میں قید کر لے جس طرح وہ اس وقت اس کے حصار میں قید تھی۔ زو بیبی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، نکال لو اپنا غصہ مجھ معصوم پر۔ وہ گھما کر اس کا رخ اپنے طرف کرتے ہوئے بولا تو زونش اس کے سینے سے جا لگی، جس پر وہ اریان کو خفگی سے گھورتی چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ اریان نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ شاپنگ پر جانا تھا نا، چلو آ جاؤ شاپنگ پر چلیں، پھر میں سب کچھ زو بیبی کو لے کر دوں گا، وہ محبت سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ اب نہیں مجھے جانا بس۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ اریان گہرا سانس بھر کر رہ گیا، اسے پہلی دفعہ زونش کی اس قدر شدید ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ زو، اب پھر میں نے ناراض ہو جانا ہے اگر اب تم نہیں مانی تو، وہ اسے زونش کی طرح دھمکی لگاتے بولا تھا تو اس بار زونش نے خفگی سے گھورنے کی بجائے غصے سے گھور کر اریان کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کا مکہ جڑا تھا۔ یار تم تو شادی سے پہلے ہی بیویوں والی لڑائی کرنے لگ گئی ہو، وہ اس کے غصے کرنے، اس کی ناراضگی جتانے اور اب اس کے اپنے سینے پر مکہ مارنے پر مسکراہٹ ضبط کرتے بولا تو زونش نے ایک دفعہ پھر سے گھورا۔ چلو آ جاؤ، اب شاپنگ پر نہیں جانا کیا؟ وہ اسے کہتے خود اس کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں سے اس کی بلیک چادر نکالتے اس نے خود سے زونش کے سر پر نفاست سے دی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے روم سے باہر نکل گیا، جس پر زونش بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اتنی ناراضگی کافی تھی جتنی وہ جتا چکی تھی۔ یار تم تو آفس ہو، میں تمہارے گھر جا کر کیا کروں گا؟ وہ سر کھجائے کہنے لگا تو اذان نے فون کو ہی کان سے ہٹاتے اسے گھورا جیسے سامنے ہی سراج کھڑا ہو۔ اریان گھر ہی موجود ہے اور ویسے بھی میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے تک، تم سے کچھ بات کرنی ہے اسی لیے بلا رہا ہوں، ورنہ کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے گھر بلانے کا مجھے؟ وہ غصے سے تقریباً اس کے اوپر دبے دبے لہجے میں غراتے ہوئے بولا تو سراج نے فون کو فوراً اپنے کان سے ہٹایا تھا۔ کیا بات کرنی ہے یہیں بتا دے، میں سن رہا ہوں۔ سراج اس کے غصے کو جاننے کے باوجود اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اذان نے اس بار تقریباً اس پر چیخنا ہی تھا۔ تو گھر پہنچ خبیث انسان، میں تمہارے یہ نخرے دیکھتا ہوں۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے فون کھٹاک سے بند کر گیا کہ سراج بمشکل ہی اپنا پتہ نہیں کیا ضبط کر پایا۔ سراج پورچ میں اپنی گاڑی پارک کرتا لاؤنج میں ابھی داخل ہوا ہی تھا جب صنف نازک اس کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ اسے گرنے سے بچانے کے لیے سراج نے جلدی سے اس کا نازک موم جیسا ہاتھ اپنے مضبوط کھردرے ہاتھ میں پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ صنف نازک اس کے مضبوط باڈی بلڈر وجود کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس ناول میں ہر کپل کا انٹریکشن اسی طرح ہو رہا ہے۔ اللہ جی، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی
लड़खड़ाते हुए मासूमियत से बोलती सामने वाले को अपने हिसार में जकड़ गई थी। हमना ने अपने से टकराने वाली दीवार को देखना चाहा तो चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन सामने ही इस दिन वाले पुलिस ऑफिसर को देखकर इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। वो जर्द पड़ते चेहरे के साथ जल्दी से इस से 4 कदम की दूरी पर हटी थी। सिराज अभी तक इसकी आंखों के सहर में जकड़ा हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। छोटी सी लाइन को बमुश्किल ही कंप्लीट करते इसने अभी तक अपने माथे पर मौजूद हाथ को हटाया था। सिराज सख्ते से बाहर निकला था और इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो लरजते वजूद के साथ इसके सामने खड़ी अपने आप को काबू पाने की कोशिश कर रही थी। सिराज को हैरानगी हुई, इसने अब तो पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी जो वो इससे डर रही थी। इस वक्त तो वो पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस इसके सामने मौजूद था। इट्स ओके, आप रिलैक्स रहें। वो पहली बार बराह रास्त इससे बात कर रहा था। सिराज का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। हमना अभी तक सर झुकाए कपकपा रही थी। सिराज को इसके इस तरह से कपकपाते देखकर अजीब बेचैनी हुई। अरियान घर में ही मौजूद है। वो अब इससे पूछ कर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हमना ज़ोरों शोर से नफ़ी में सिर हिलाते पीछे हटी। सिराज मेस्मराइज हुआ। अच्छा, कहाँ गया है वो? मैं तो इससे मिलने आया था। फिर से सवाल करते वो वहीं पर खड़ा हो गया। वो जोनिश के साथ। आप प्लीज़ बिना अटके बोल सकती हैं? वो इसके इतना ज़्यादा लड़खड़ाने पर इसकी बात बीच में ही टोकते हुए बोला तो इस बार हमना ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। सिराज इसकी हरकत देखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। वो इसकी हर बात का ऐसे ही जवाब दे रही थी जैसे वो सिराज की गुलाम हो और इसकी बात ना मानने पर सिराज इसे मार देगा। कम अज़ कम सिराज को इसकी हरकतें देखकर यही महसूस हुआ था। वो जूनिश के साथ बाहर गया है। और हमना ने बिना अटके आंख बंद करते इसे कहा तो सिराज का दिल किया वो ज़ोर से कहकहा लगा कर हंसे। अब तो इसे वाकई ही यकीन हो गया था कि ये लड़की यही समझ रही थी कि इसकी बात ना मानकर वो इसे जान से मार देगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब वो ऐसा सोच ही रही थी तो सिराज को कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए था ना। वो मुस्कुराहट ज़ब्त करते संजीदगी से बोला और इसके ऐन मुताबिक हमना ने फ़ौरन से जवाब दिया था। हमना, ओह नाइस नेम। तो मिस हमना, कहाँ रहती थी आप और यहाँ क्या करने आई हैं? सिराज फिर से पूछने लगा तो इस बार हमना ने दिल में सोचा कि क्या इसका इंटरव्यू चल रहा है। मैं अमेरिका से। शायद अब भूल रही हैं बिना अटके। वो फिर से इसकी बात बीच में ही टोक गया तो इस बार हमना का चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा था। शायद नहीं, यकीनन इसे गुस्सा आ रहा था। सिराज को वो लड़की बार बार अपनी तरफ मेस्मराइज कर रही थी। चले छोड़ें इस बात को मिस हमना, आप एक गिलास पानी ले आए। वो बात को टालते अब लाउंज की तरफ बढ़ गया था और हमना भी फ़ौरन से हाँ में सर हिलाती इसकी ताबेदारी करती पानी का गिलास लेने चली गई। सिराज को वो मासूम सी लड़की घायल कर रही थी और हद से ज़्यादा कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो पानी पकड़े इसकी जानिब आई। थैंक यू मिस हमना। वो पानी पकड़कर मुस्कुराहट उछालते हुए बोला तो हमना फ़ौरन से वहाँ से गायब होती दोबारा से किचन की तरफ भाग गई। सिराज पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए किचन की तरफ ही देखने लगा, लेकिन फिर वो किचन से बाहर नहीं निकली। सिराज ने गहरा सांस भरा और अपना मोबाइल निकाल कर अजनान को कॉल करने लगा, जिस पर वो इसे 5 मिनट का वेट करने का कहता कॉल कट कर गया। सिराज ने दोबारा किचन की तरफ देखा, लेकिन हमना कहीं भी नज़र ना आई। अज़ान, आपको पता है ज़ियान भाई भी ज़ायशा आपी के साथ चले गए हैं। आर्यान भी जूनिश को शॉपिंग के लिए ले गया। और आप कहाँ हैं? मुझे भी जाना है आपके साथ शॉपिंग करने के लिए। नूर अज़ान को फ़ोन करती नाक मुंह फुलाए बोली तो अज़ान जो ड्राइविंग करते घर की तरफ आ रहा था इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ठीक है मेरी जान, हम भी शॉपिंग पर चलते हैं, तुम रेडी रहो, मैं बस 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। वो मुस्कुरा कर कहते कॉल काट गया। जबकि इसकी बात सुनते नूर का चेहरा खिलखिला उठा था। वो याहू का नारा लगाती जल्दी से बेड से उठती तैयार होने लगी तो अज़ान, जिसने 10 मिनट का कहा था, 5 मिनट में नूर को इसकी गाड़ी की आवाज़ आई। वो गाड़ी की आवाज़ नीचे पोर्च में सुनाई दी तो चेहरा खुशी से खिल उठा। अज़ान लाउंज में दाखिल हुआ तो सिराज पहले से ही लाउंज में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। अज़ान को आते देख कर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। कमीने इंसान, कब से मुझे बुलाया हुआ है और तू अब आ रहा है? सिराज गुस्से से भड़कते हुए बोला था। सिर्फ अज़ान को दिखाना चाहता था कि वो अज़ान का इंतज़ार करते करते बोर हो गया था। हालांकि अच्छी खासी मुलाकात के बाद बोर होना इसका बनता नहीं था। यार, मैं अभी तुम्हारी भाभी को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ तो तुमसे बाद में बात करता हूँ, अज़ान उजलत में कहता आगे बढ़ा तो इसकी बात सुनते सिराज का तो दिमाग ही घूम गया। मतलब एक तो वो इसे किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए घर पर बुलाया और
अब बात करने की बजाय अपनी बीवी को लेकर बाहर जा रहा था। सिराज का गुस्सा करना बनता था। एग्जैक्टली बनता है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सुकून से पहले मुझे बात बता जिसके लिए बुलाया था। सिराज गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोला। तो अज़ान ने आईब्रो रेस करते सिराज को देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें एक अदद बीवी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है जिसके साथ तुम भी शॉपिंग पर जा सकते। अज़ान इसे सुलगाने वाले अंदाज में बोलते हुए सिराज को आग लगा गया। सिराज ने गुस्से से मुठियाँ भींचते हुए अज़ान को घूरा। वैसे अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुमसे छोटा है अरियान और माशाल्लाह से इसकी एक अदद बीवी भी है। अज़ान अब भी इसे सुलगा रहा था और सिराज के ज़ाविये बिगड़ रहे थे। तो इसकी शादी तुम्हारे ही फज़्लो करम से हुई है। मेरी भी अपने फज़्लो करम से करवा देना। सिराज ने इस बार इसे कुछ इशारा ही देते हुए कहा था जिसे फ़िलहाल अज़ान नहीं समझ सका था। अलबत्ता इसकी बात पर अज़ान ने अपना आईब्रो रेज़ ज़रूर किया था और सिराज को मशकूक नज़रों से देखा था जिस पर सिराज गड़बड़ाया था। क्या कहना चाह रहा है ज़रा खुल कर बताना मुझे। वो अब इसकी तरफ तफ्तीशी नज़रों से देखते हुए बोल रहा था और सिराज खुद को कोस रहा था। अभी वो कुछ कहता जब इसे सामने से नूर आती हुई दिखाई दी तो सिराज ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। लो नूर भाभी आ गई। अस्सलाम वालेकुम नूर भाभी। वो नूर की तरफ इशारा करते इसे सलाम करने लगा तो अज़ान ने भी मुड़ कर नूर की तरफ देखा। नूर ने सिराज के सलाम का हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। यार मैं ऊपर ही आ रहा था, आ जाओ मेरा ड्रेस निकालो फिर चलते हैं। वो सिराज को वहीं पर छोड़ते नूर को एक बाजू के हाले में लेता दोबारा से सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा जिस पर सिराज इसे घूरता रह गया। फिर वो अपने बालों में हाथ फेरता दोबारा से किचन की जाने मुतवज्जा हुआ था जहाँ से हमना गायब होकर अभी तक नहीं निकली थी। अभी सिराज वापसी के लिए मुड़ता जो इसे ग्रे दुपट्टा लहराता नजर आया। सिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट की गहरी रमक दौड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमना किचन से निकलती हुई दिखाई दी लेकिन सिराज को अभी तक वहीं पाकर इसके चलते कदम वहीं पर रुके। आंखें हैरानगी से फटी, दिल डूब कर उभरा। वो जल्दी से वापस किचन में भाग कर गायब होती जब सिराज की आवाज़ इसके कानों से टकराई। रुकें। और एक दफ़ा फिर हमना के चलते कदमों को ब्रेक लगी। वो वहीं पर रुख इससे मोड़े स्टैचू बनकर खड़ी हो गई। इधर आएँ। वो इसे वापस अपनी तरफ बुलाते हुए बोला तो हमना का चेहरा जर्द पड़ा। वो थूक निगलती इसकी तरफ घूमती छोटे छोटे कदम उठाती सिराज की तरफ बढ़ने लगी और इसके अपनी तरफ उठते हर कदम पर सिराज को अपना दिल कानों में धड़कता सुनाई दिया। हमना इससे 5 कदमों की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई जिस पर आगे का सफ़र सिराज ने तय किया और 2 कदम के फासले पर जाकर खड़ा हुआ। यहाँ आपके घर में मेहमान को चाय वगैरह देने का रिवाज नहीं है, आपने तो सिर्फ पानी पर ही डाल दिया मुझे। वो इसके पानी देने के बाद गायब होने पर टॉन्ट करते हुए बोला तो हमना ने अपना सर नीचे झुका लिया। आई एम सॉरी। वो हल्की आवाज़ में मिनमिनाते हुए बोली। चाय का अब भी नहीं पूछा इसने से सिराज ने इसे छोटी सी घुरी से नवाजा जो वो सर झुके होने की वजह से देख भी नहीं पाई। एक बात पूछूं मैं आपसे। वो इससे इजाज़त तलब करते हुए बोला तो हमना ने सर उठाते नासमझी से हाँ में सर हिलाया। आप मुझसे डरती हैं? वो इसकी सहर में जकड़ने वाली आंखों में देखते पूछ रहा था और इसकी बात पर हमना का बदन कपकपाने लगा था। वो ना कहना चाहती थी लेकिन सर हाँ में हिल रहा था। सिराज इसकी हरकत पर मुस्कुराहट जब्त कर गया और डरने की वजह दोबारा से सवाल आया। मैं नहीं डरती आपसे। वो इस बार अपनी उंगलियों को मसलते हुए इन्हें सुर्ख कर चुकी थी। लेकिन अभी तो आप मुझसे कह रही थीं कि आप मुझसे डरती हैं। वो थोड़ी देर पहले हाँ में हिलते सर का हवाला देते बोला। मुझे नहीं पता। मैं जाऊँ यहाँ से? वो इसके सवाल पर नर्वस होती अपने ही घर के कमरे में जाने की इजाज़त मांग रही थी। जी चली जाएं लेकिन जब अगली दफ़ा हम शायद अरियान की शादी पर मिलेंगे तो मैं तब आपको ब्लैक कलर के ड्रेस में देखना चाहता हूँ। वो इसकी इससे अगली मुलाकात पर ब्लैक ड्रेस पहनने की फरमाइश कर रहा था और हमना ये कहना चाहती थी कि हम क्यों मिलेंगे आगे और अगर मिल भी जाएं तो हम क्यों पहने आपके कहने पर। लेकिन वो ज़ुबान पर कफल लगाए कंफ्यूज हो गई थी सिराज की बात पर। पहनेंगी ना आप? वो इस दफ़ा अपनी बात पर जोर देते बोला और हमने अपनी सारी सोचें हवा में झोंकती जल्दी से हाँ में सर हिला गई। सिराज सरशार हुआ। गुड गर्ल, चले अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कहता आंखों पर ग्लासेस लगाते बाहर की जाने पड़ गया और हमने अपनी कांपती फ्रीज होती टांगों के साथ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर अपने रूम की तरफ भाग गई थी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। और न्यू जो कपल हमना का और उसके भाई का जो दोनों अलग अलग बन रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो होप सो आप लोगों को पसंद आ रहा हो नॉवेल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।